Friend, on onset, let me thanks the organizers for inviting me and providing me this opportunity to share my experiences. Because as it is mentioned by the organizers that I got an opportunity to work in various institutions within country and as well as some of the foreign countries as well. Like I spent good time in the University of California, and then I was in University of Wollongong, as it is mentioned by organizers. Then a couple of universities in South Korea and Taiwan, and I do have collaborations with Japanese universities as well. So I have visited Japanese university many times during these last 10-15 years. Before I start my proceedings, let me appreciate Miss Ekta for wonderful prayer, and as well as I would like to appreciate all MSc students for wonderful welcome song as well. Friend, today I will be mainly sharing my experiences. It's not going to be talk because what I did, whatever I have learned during these 32 years of my journey, right from my first like assignment, because I started my career, teaching career rather, from one of the affiliated colleges of this university in 1988, and then I move around. I mean, many places within the country and outside the country as well. And fortunately, I got an opportunity, wonderful opportunity, rather, by the grace of God, to visit many institutions across the country in the capacity of NAC PAT member, because I have visited many colleges in UP as well in the capacity of NAC PAT member, and so I know like how is the scenario of college, what kind of infrastructure we are having in colleges, and like state universities in particular. And based on that, I thought, because usually in my university every year in the beginning I deliver whatever talk I'm going to deliver today. Talk means whatever experience I'm going to share with you all today. I usually share this kind of I usually arrange this kind of lecture for my student, like MSc student, because I have fortunately university has given me opportunity to work in various department in university, like Department of Physics, where is my from where from I'm getting my bread and butter. And I was because I was head Department of Physics as well during 2013 to 16, and now I'm heading two more departments, like Department of Electronics, which is newly established in 2016, and then in 2013 we have established Dindayal Upadhyay Kaushal Kendra, wherein we are imparting BHOK and YAMHOK for imparting skill-based education in the area of industrial automation and automobile, जहाँ पर हमारे पास काफी बच्चे हैं, like we are having around 400 to 500 students there. So, friend, before because I would like to share my screen, to begin with, and then I will proceed further. गुप्ता जी, ये visible है मेरी screen? Yes, sir. Slide so. Yes, sir. It's okay, sir. Okay. It is visible. Okay. So, my friend, because this talk, as it is mentioned by Gupta ji, this talk is mainly, I have prepared this talk for MSc student particularly, although the title is Career Opportunities for BSc, MSc and PhD student, because I have some slides, because sometimes what happens, you might be MSc student, but your younger brother or sister, they might be enroll and might be taking education in some colleges, right? Undergraduate courses like BSc, and there might be student who like might be a PhD aspirant also, right? So I would like to tell you what kind of opportunities you will be having after completion of BSc, MSc and PhD. Particularly my main focus would be the physics student, right? जब हम फोकस की बात करते हैं, जब हम किसी अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, फ्रेंड, वेरी रिसेंटली वी हैड वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स इन दिस कंट्री. आपको पता होगा कि हमारे एक उभरते हुए कलाकार सुशांत सिंह राजपूत, फॉर वन और अदर रीजन ही हैज कमिटेड सुसाइड. दिस इज वन ऑफ द वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स वी हैड वेरी रिसेंटली. लेकिन जब मैं ये इस घटना को जब मैं देखता हूँ बड़े आई मीन सीरियस होकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आजकल आपको पता होगा कि मीडिया में काफी अलग-अलग तरीके का रूमर्स आ रहे हैं कि कोई जिम्मेदार है उनके
सुसाइड के लिए लोगों ने उनको मजबूर किया है। अब क्या सच है, क्या नहीं है, ये तो उन्हीं को पता होगा। मैं वो बताना भी यहाँ ये वो दैट इज़ नॉट अवर लाइक टॉपिक ऑफ डिस्कशन। मैं इसीलिए ये ज़िक्र करना चाहता हूँ क्योंकि आप देखिए कि ये तो सब तरफ होता है। मतलब आप कहीं पर भी रहिए, आप अगर इफ यू आर आई मीन एज़ फार एज़ स्टूडेंट कम्युनिटी इज़ कंसर्न्ड, अगर कोई स्टूडेंट अगर आई विल बी वेरी आउटस्पोकन टुडे गुप्ता जी, हाँ, काइंडली ऑल माय फैकल्टी मेंबर्स काइंडली एक्सक्यूज मी बिकॉज़ आई एम आल्सो फ्रॉम सेम फ्रेटर्निटी, राइट? ओके, कुछ कुछ मेरे जो एक्सपीरियंसेस है मेरे खुद के, मैं ऑब्जर्व करता हूँ काफ़ी दिनों से, तो वो मैं यहाँ पर बयान करना चाहूँगा। तो बहुत बार ऐसा होता है, स्टूडेंट फ्रेटर्निटी से शुरुआत मैं करता हूँ क्योंकि मेन ऑडियंस हमारा स्टूडेंट है। तो हम लोग टीचर्स क्या करते हैं कि अगर कोई बड़ा एंथुसियास्टिक स्टूडेंट है, क्यूरियस स्टूडेंट है, अगर वो ज़्यादा सवाल हमें करता है, तो ज़्यादातर हमारे कम्युनिटी मतलब टीचर फ्रेटर्निटी की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं, उस स्टूडेंट को डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि हम नहीं चाहते कि वो बार-बार सवाल करे, हम नहीं चाहते कि वो बार-बार क्वेश्चन करे। तो अगर क्योंकि वो सवाल करता है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। मैं सभी टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ। आज जो इस गैदरिंग में जो टीचर मौजूद है, वो सभी बड़े अच्छे टीचर्स हैं। मैं ये इन टीचर की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। मैं उन टीचर की बात कर रहा हूँ जो मतलब स्टूडेंट को अपने अपने बच्चों जैसा नहीं समझते, बिकॉज़ आई ऑलवेज़ बिलीव दैट स्टूडेंट्स आर आवर ओन किड्स, राइट? हम हमारे जो बच्चों के साथ में, जैसे कि मेरा बेटा और बेटी है, अगर उसके कुछ सवाल है तो मैं तो उसको न नर नज़रअंदाज नहीं करूँगा, मैं तो प्रायोरिटी उसको दूँगा। अगर मैं मेरे बेटी और बेटे को अगर प्रायोरिटी देता हूँ, तो व्हाई नॉट टू माय स्टूडेंट, बिकॉज़ वो भी तो मेरे बच्चे ही हैं। वो भी तो इस संसार ने मुझे जो मौका दिया है इन बच्चों के साथ रहने का, तो उसको तो मुझे मतलब दोनों हाथों से समेटना है। अगर मैं ऐसा ना करूँ, तो इट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू बी ऑनेस्ट। तो लेकिन ये ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट, अगर कोई बच्चा अच्छा टैलेंटेड है, क्यूरियस है, बार-बार सोचो को सवाल करता है, तो ना तो टीचर उसको लाइक करते हैं, ना तो बाकी स्टूडेंट उसको लाइक करते हैं। एंड सेम थिंग इज हैपनिंग विद टीचर फ्रेटर्निटी आल्सो। अगर हमारे टीचर फ्रेटर्निटी में कोई अगर ज्यादा काम करने वाला है, बड़ा प्रोएक्टिव है, प्रोग्रेसिव है, तो ना तो वो अथॉरिटी को अच्छा लगता, ना तो हमारे कलीग को अच्छा लगता। हम उसको पीछे, मतलब हमारे पास लेग पुलिंग इतना सारा है कि हम उसको मतलब कहीं का नहीं छोड़ते। लेकिन इफ यू आर हैविंग वेरी गुड पॉलिटिकल बैकग्राउंड, आप कुछ ना करें, लेकिन पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपका अच्छा है, तो आप छाए रहेंगे कॉलेज में, छाए रहेंगे आप यूनिवर्सिटी में, आपको अच्छे-अच्छे मौके मिलेंगे, अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। भले ही आपके पास कुछ क्वालिटी ना हो, भले ही आपके पास कुछ कंटेंट ना हो, बट यू विल बी एट द टॉप इन द वेरेवर यू आर, आइदर यूनिवर्सिटी तो या तो कॉलेज। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि जो सुशांत सिंह के साथ हुआ, जो हम कह रहे हैं आजकल कि उनको मौका नहीं दिया जा रहा था, उनको साइड ट्रैक किया जा रहा था, ये तो होता ही है, ये सब तरफ होता है, एवरीथिंग, एवरीवेयर। आप किसी भी एजुकेशन लो, पॉलिटिक्स लो, कहीं पर भी ये होता है। हम हमारे जहाँ पर हम रहते हैं, हमारे हमारे मतलब जहाँ जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, उसके इर्द-गिर्द भी ये सब होता है। मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि अगर हम ऐसे माहौल से अगर अपने आप को डिमोरलाइज़ करते हुए चलेंगे, तो हम तो जी नहीं पाएँगे, जैसे कि सुशांत सिंह ने किया, अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट। तो मैं सभी एमएससी स्टूडेंट को ये बताना चाहूँगा कि देखो, जीवन में ये देखो, लाइफ इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर, राइट? यू आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ अप एंड डाउन्स, एवरीबॉडी, इट्स नॉट ओनली यू। हम लोगों के साथ में होता है, सबके साथ में होता है, सभी के जीवन में कभी भी हर एवरी टाइम यू आर नॉट गोइंग टू टेस्ट द टेस्ट ऑफ सक्सेस। आपको तो फेल्योर टेस्ट करना ही है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो कन्वेंशनल एजुकेशन है, ये कन्वेंशनल एजुकेशन ने हमें कभी भी फेल्योर को पचाना सिखाया नहीं, उसको डाइजेस्ट करना सिखाया नहीं, अनफॉर्चुनेटली। ना तो हमारा इवन घर में भी वैसा माहौल होता नहीं। घर में भी हम माँ-बाप भी क्या करते हैं कि हमारा बेटा और बेटी अगर सक्सेसफुल होता है, तो हम बड़ा उसका स्वागत करते हैं, उसको कांग्रेचुलेट करते हैं, उसको एप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जब भी वो मार्क्स अच्छे नहीं लाता, वी विल ऑलवेज क्रिटिसाइज़। ज़्यादातर पेरेंट, कुछ पेरेंट्स हैं जो ऐसा नहीं करते, बल्कि ज़्यादातर पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो सिचुएशन ऐसी है कि हमें फेल्योर एक्सेप्ट करने की जो जो कला होती है ना, वो कभी हमें मौका ही नहीं दिया गया उसको सीखने का, अनफॉर्चुनेटली। एज़ अ रिजल्ट ऑफ दैट, फॉर वन और अदर रीज़न हम जो है फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाते हैं, एंड देन वी कम अप विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो इसके लिए मैं एक थोड़ा-सा टू बिगिन विद, बिफोर आई स्टार्ट माय प्रोसीडिंग, आई थॉट लेट मी टेल यू साइंटिफिक मेथड टू एक्सेप्ट योर फेल्योर। अब फेल्योर एक्सेप्ट
आई मीन यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ हॉरिबल टाइम इन योर लाइफ। इसलिए फेलियर को मतलब हमें आपको अपने आप को फेलियर को मतलब डाइजेस्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले जो है हमें अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। आप सभी को पता होगा, जितने फैकल्टी मेंबर्स है सभी को पता है। और अगर आप इस कॉलेज में अगर सीनियर स्टूडेंट होंगे तो कम से कम आपके कार्यकाल में हो सकता है नैक का एक एक बार, तो मुझे इस कॉलेज का नैक का स्टेटस पता नहीं है क्योंकि मैं पहली बार गुप्ता जी से भी इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो आई डोंट नो। बट आई एम श्योर कि एक दो साइकिल तो हो ही गई होंगी इस कॉलेज की, तो आपको पता ही होगा नैक। तो नैक ने हमें ये सिखाया, नैक ने हमें एक आदत लगना, अपने आप को पहचान लिया, अपने स्ट्रेंथ आपने जान लिया, तो आपको पता करना चाहिए कि भाई शॉर्ट टर्म मैं कैसे इसको एक्सप्लोर करूं ड्यूरिंग माय एमएससी। जैसे कि मान लो आपकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है, आपका स्टेज करेज बड़ा अच्छा है, दिस इज योर स्ट्रेंथ, राइट? अगर ये स्ट्रेंथ है तो आपको उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा ड्यूरिंग एमएससी इटसेल्फ। आपको प्लेटफॉर्म ढूंढने पड़ेंगे आपको। देखो अपॉर्चुनिटी जो है ना, हमें हमें ढूंढनी पड़ती है अपॉर्चुनिटी। ऐसे हमारा दरवाजा कभी खटखटाती नहीं है, अपॉर्चुनिटी को हमें ढूंढना पड़ता है, ढूंढ कर उसको ग्रैब करना पड़ता है। तो आप अगर अपने स्ट्रेंथ को आपको पता होगा तो आप अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ लेंगे, उसका एनकैच करेंगे और अपने आप को फ्लरिश करेंगे, और उससे एक नया आपको नई उम्मीद होगी, एक नया कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपका मॉरल बड़ा ऊपर होगा। लेकिन आप होने के बावजूद भी आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं, राइट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो, जैसे कि मैथमेटिकल फिजिक्स आप पढ़ते हो एमएससी फर्स्ट ईयर में। अब कुछ बच्चे हैं जिनका मैथमेटिक्स में बिल्कुल वीक होते हैं, कुछ बच्चे हैं कि जो जैसे कि मुझे पता है, मेरे मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे कि सम स्टूडेंट्स आर वेरी गुड इन मैथमेटिक्स बट दे आर वेरी वीक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट? क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब मैथमेटिक्स वीक होता है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ा अच्छा होता है। तो सभी को अपने आप को समझना पड़ेगा कि मेरा वीकनेसेस क्या है, अकॉर्डिंगली आपको अपॉर्चुनिटी दिखेंगे एंड एट द सेम टाइम चैलेंजेस भी आपको पता चलेगी कि भाई आपकी जो वीकनेसेस है अकॉर्डिंगली आपके शॉर्ट टर्म चैलेंजेस वो होता है कि जो अपने वीकनेसेस को हाइड करते हुए, जो स्ट्रेंथ को पहचानते हुए वो आगे बढ़ता है। और जो फेलियर जो होता है ना, अपने वीकनेसेस को हाइड नहीं कर पाता, लोग हावी हो जाते हैं उसके ऊपर एंड देन बाकी लोग सक्सेस होते लेकिन आप फेलियर होते हो। तो ऐसे कुछ प्लेयर थे जो अपने लाइफ में उतने although they are good player but still वो चोटी पे पहुंच नहीं पाए क्योंकि वो अपने वीकनेसेस को सही सही समय में उन्होंने मतलब हाइड कर नहीं पाए एंड देन लेटर ऑन दे कुड उन्होंने कुछ सॉल्यूशन पाया है बट इट टुक लॉन्ग टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे वर नॉट कंसिस्टेंट इनफ इन इंडियन टीम। बट देयर आर सम प्लेयर दे आर वेरी कंसिस्टेंट एंड वन ऑफ द एग्जांपल इज विराट कोहली। उसके भी कुछ वीकनेसेस है लेकिन वो वीकनेसेस को पता नहीं करने देता। तो आपकी जो वीकनेसेस है उसको आपको शॉर्ट टर्म प्लानिंग होनी चाहिए आपकी उसको हाइड करने के लिए, लेकिन उसी वीकनेसेस को लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए उसको आपको ओवरकम करने के लिए। तो ये अगर आप करोगे और साथ साथ ये जो नीचे ये लो जो स्क्वायर है, काइजन कंसेप्ट जापानीज बिजनेस फिलोसफी है। व्हाट इज दैट काइजन? काइजन इज ऑल अबाउट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ये तो है वर्किंग पॉलिसीज पर्सनल एफिशिएंसी, लेकिन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज नीडेड फॉर एवरीबॉडी, इट्स एवरीबॉडी। तो इंप्रूवमेंट की जब बात करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी खामियां क्या है, क्योंकि अनलेस यू आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस यू विल नॉट बी एबल टू इम्प्रूव, राइट? तो अगर आपने मान लिया जैसे कि हमारी गलत क्या आदत होती है, हम कभी मानते ही नहीं कि हम कुछ गलतियां कर सकते हैं, हमारी कुछ वीकनेसेस हम मानते ही नहीं है। जब आप मानोगे नहीं तो आप कैसे उसको सुधारोगे? तो इसीलिए ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जो काइजन का कंसेप्ट है ये सभी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसीलिए माय फ्रेंड ऑल एमएससी स्टूडेंट, इफ यू रियली वांट टू एक्सेप्ट फेलियर, अगर फेलियर को अगर एक्सेप्ट करना सीखोगे, अगर सीखने के लिए आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा। अगर अपने आप को आप पहचान पाओ तो डेफिनेटली आप वीकनेसेस को एक्सेप्ट करोगे और वो जो फेलियर होगा उसको आप सक्सेस की पहली स्टेप रियल मायनों में आप मानोगे एंड देन यू विल बी फ्लरिश लाइक एनीथिंग। मैं आगे बोलूंगा। ये किताब है, ये किताब की नाम मैं बता, ये नीचे देखिए, अवेकन द लीडर इन यू, मितेश खत्री एंड इंदु खत्री। मैं ज्यादातर ये बताता हूँ क्योंकि इसमें क्या है, ये किताब में लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय माइंडसेट वर्सेस एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। उन्होंने बताने की कोशिश की कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट क्या होता है, एम्प्लॉय माइंडसेट में कन्वेंशनल माइंडसेट। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि देखिए, हम मतलब कोई भी हो, आइदर यू कुड बी स्टूडेंट, यू कुड बी फैकल्टी मेंबर, यू कुड बी एनीबॉडी,
हम लोगों की आदत क्या होती है ना, हम कभी लीड नहीं करना चाहते। हम कभी जैसे कि भई आप लड़ो हम कपड़े सँभालते, जो कहावत है ना हिंदी में, उस टाइप का हमारा एटीट्यूड होता है कि भई आप लड़ो, आप सामने रहो, हम पीछे रहते। क्योंकि पीछे रहने का एडवांटेज क्या है कि अगर कुछ हुआ तो सामने वाले पत्थर खाएँगे, कुछ हुआ तो सामने वाले मुसीबत झेलेंगे। मैं तो जब पीछे हूँ, मुझे एक लेयर बफर मिलेगा। तो लेकिन इससे क्या होता है, आप ज़िंदगी भर पीछे रहते, ज़िंदगी भर पीछे रहते। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, ये जो माइंडसेट है आपका, माइंडसेट ये टिपिकल एम्प्लॉय माइंडसेट क्या है कि भाई मैं पीछे रहना चाहता हूँ, मैं लीड नहीं करना चाहता हूँ। आई विल बी कंसीडरिंग माई सेल्फ एज वन ऑफ द सबऑर्डिनेट, वन ऑफ द माइन्यूट पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। मैं कभी किसी चीज में हर एवरी टाइम व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू, जैसे कि मैं स्टूडेंट की बात करता हूँ, स्टूडेंट कहेंगे कि नहीं नहीं ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। अगर मान लो आपके इंस्टीट्यूट में कुछ कुछ भला बुरा अगर होता है आपके खुद के सामने, तो आपको लगेगा कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो स्टूडेंट हूँ इस कॉलेज का, ये तो जिम्मेदारी हमारे टीचर्स की है, ये तो जिम्मेदारी हमारे एचओडी की है, ये तो जिम्मेदारी हमारे हमारे प्रिंसिपल साहब की है। तो मैं क्यों इसमें लीड करूं, क्योंकि ये तो मेरा मुझे करने की जरूरत नहीं है। एवरीबडी इज थिंकिंग लाइक दिस ओनली। एम्प्लॉय भी, जैसे कि हमारे टीचर्स भी वैसा ही सोचते हैं कि भाई ये जिम्मेदारी मेरे एचओडी की है, एचओडी सोचते हैं ये जिम्मेदारी मेरे प्रिंसिपल की है, प्रिंसिपल सोचते हैं ये जिम्मेदारी मेरे संस्था जो जो ओनर है वो इंस्टीट्यूशन की उनकी है, वो सोचते हैं ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। मतलब हर कोई जिम्मेदारी से मतलब बचना चाहता है। ये इसको बोलते हैं टिपिकल एम्प्लॉय माइंडसेट। एम्प्लॉय माइंडसेट डजंट मीन दैट आर यू आर एम्प्लॉय और बिजनेस कर रहे हो। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का ऐसा होता है कि हर बार यू आर गोइंग टू टेक द लीड, यू आर गोइंग टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये सोचेंगे कि भाई आपके पास वेदर मतलब आपके पास लिखित कोई जिम्मेदारी हो या ना हो, लेकिन आप सोचेंगे कि भाई ये मैं आई एम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, इसलिए मुझे लीड करना है। मुझे इसमें अगर आप चलते हुए आपको अगर कुछ भला बुरा अगर हो रहा है आपके इंस्टीट्यूट में, तो आप कहेंगे कि नो, इट इज माय रिस्पॉन्स, मेरे सामने हो रहा है, आई एम गोइंग टू रजिस्ट, आई एम गोइंग टू टेक द इनिशिएटिव टू इराडिकेट दिस इश्यूज। ये अगर माइंडसेट आपके पास होता है तो आप जहां पर भी जाओगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये माइंडसेट आपको जब आप स्टूडेंट होते हैं ना तभी इनकलकेट करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप स्टूडेंट, बिकॉज जो भी हमारी पर्सनैलिटी बनती है ना, जो स्टूडेंट लाइफ में जो बनना है वही बनती है। आगे आगे चलकर बड़ा मुश्किल होता है अपने पर्सनैलिटी को फाइन ट्यून करना। ये दिस इज ट्रू दैट यू कैन ट्यून योर पर्सनैलिटी थ्रू आउट योर लाइफ, दिस इज ट्रू। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है, जैसे कि वो जो आपको पता होगा जो मटका बनाने वाला जो कुम्हार होता है ना, कुम्हार हिंदी में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, लेकिन वो जो मटका बनाने वाला जो होता है ना, वो जब वो मटका जब वो जो मिट्टी जो है जब वो कच्ची होती है तो ही कैन शेप दैट लाइक एनीथिंग, बट वंस इट इज बेक, ओके, बेक करने के बाद तो उसको हम अगर शेप देने की कोशिश करेंगे तो वो तो टूट जाएगा, फूट जाएगा, राइट। तो वैसा ही आप लोग हैं बच्चों, क्योंकि आप जब तक स्टूडेंट हो अपने आप को जैसे चाहे वैसे मोल्ड कर सकते हो। एंड दिस इज दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी वंडरफुल वंडरफुल टाइम ऑफ योर एंटायर लाइफ टाइम, कि जहां पर आप अपने आप को जैसे चाहे वैसा मोल्ड कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि आप अभी से वो उस टाइप का माइंडसेट बना के चले कि भाई जहां पर भी जाऊंगा, वेदर मुझे मैं उस इंस्टीट्यूशन में लीड करूं या ना करूं, लेकिन अपने आप को मैं लीडर समझूंगा, अपने आप को मैं जिम्मेदारी लेने वाला समझूंगा। आप अगर ऐसा करोगे तो आप कभी भी फेल्योर नहीं होगे ज्यादातर, क्योंकि देखिए मैंने वैसे कहा ना कि लाइफ इज लाइक ए रोलर कोस्टर। आपको अप एंड डाउन तो रहेंगे, फेलियर तो रहेंगे, लेकिन फेलियर की संख्या आपके हाथ में है उसको कम करने की, और आप डिमोरलाइज कभी भी नहीं होंगे वो फेलियर को, जैसे मैंने बताया। ये अप्रोच आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें जैसे कन्वेंशनल ये मैंने बताया, ये जो स्टेट ये है कि व्हाट हैज चेंज, मतलब जो कन्वेंशनल अप्रोच क्या था हमारे स्टूडेंट का और सभी का, जो पढ़ो उसे याद करो एंड लिखो। एज फार एज द स्टूडेंट इज कंसर्न, एवरीबडी, मतलब पढ़ो, याद करो और लिखो, राइट। लेकिन ये तो कन्वेंशनल अप्रोच है कि भाई पढ़ते रहो, याद करो एंड लिखो। क्योंकि ये अप्रोच वाले स्टूडेंट, जैसे कि मुझे खुद पता है, जैसे कि मैं जब एमएससी में था, मुझे याद आता है मेरे पास में हमारे साथ में कुछ ऐसे स्टूडेंट थे कि रात दिन पढ़ाई करते थे, रात दिन याद करते थे, क्योंकि हम भी हॉस्टल में रहा करते थे। एंड दे यूज्ड टू बी मेरिटोरियस स्टूडेंट, राइट, मतलब पेपर में वो मेरिटोरियस रहते थे। लेकिन आगे चल के जब हम इंटरव्यू अपीयर करना शुरू किया तो वो फेलियर के रैंक में जाते रहे, क्योंकि वो रात दिन खाली रट्टा मारते रहे, जो हम कहते हैं कि रात दिन बिल्कुल बाहर करते रहे। क्योंकि देखिए वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप वो सिचुएशन को कैसे संभालते, आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबरिंग, आप प्रोसेस क्या रिमेंबर के लिए प्रोसेस क्या अडॉप्ट करते हो। आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले फाइन, लेकिन आपको अगर 100 आउट ऑफ 100 60 भी मार्क मिलते हुए अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है तो आई विल
I will prefer, if I'm on the other side of the table, selecting people, I will go for the person who has got 60 out of 100 with profound understanding. I will not prefer the student who has secure 100 out of 100 but doesn't have the like profound understanding of the subject. इसलिए आप ये समझने की कोशिश करो कि आपको समझना मतलब वो प्रोसेस को आप समझिए, एंड देन यू मस्ट बी एबल टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हमें पता है, याद है आपको, लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि भाई एक एग्जांपल कोट करो कि आप कहां पर डे टू डे लाइफ का, अगर आप एग्जांपल कोट नहीं कर पाए तो आपको तीनों के तीनों लॉ याद होके कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन अगर मुझे मेरे सामने एक स्टूडेंट आता है, कहता है कि सर मुझे एक लॉ याद है और उसका एग्जाम्पल पता है, लेकिन 2 लॉज मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता सकता, आई विल प्रीफर दैट स्टूडेंट, राइट? क्योंकि इसलिए आप ये बात समझो कि जब भी आप इंटरव्यू अपीयर करोगे तो आप सभी सवाल के करेक्ट जवाब देते, ये इंटरव्यू लेने वाले देखेंगे नहीं। आपका अप्रोच कैसा है, आपकी पॉजिटिविटी कैसी है, आप उस सवाल को कैसे जवाब देते हैं, आपका मतलब आपका सवाल जवाब देने का तरीका क्या है, आपकी प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वो उसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड। ऐसा नहीं कि आप मतलब आपको 10 सवाल किए गए, आपने 10 के जवाब दिए, इसका मतलब यू आर डन। नो, इट इज नॉट एट ऑल लाइक दिस। द वे इन विच यू आर रिस्पॉन्डिंग, आपका अप्रोच के पॉजिटिविटी कैसे, जैसे कि आपको 10 आउट ऑफ 10 पता है लेकिन यू आर नेगेटिव इन एवरी रिस्पॉन्स, नेगेटिव, कंप्लीट नेगेटिविटी, आंसर तो पता है बट आपकी नेगेटिविटी भरी है, आप में नेगेटिविटी भरी है, तो आप वो संस्था के लिए, वो इंस्टीट्यूशन के लिए बिल्कुल एसेट नहीं बनोगे, क्योंकि यू हैव लॉट ऑफ नेगेटिविटी, राइट? बट द पर्सन हु हैज गॉट ओनली 2 करेक्ट आंसर आउट ऑफ 10 बट लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, लॉट ऑफ enthusiasm, he is going to be asset, right? बाकी जो शॉर्ट कमिंग्स है वो तो पूरी कर सकता है वो, इसलिए आप ये बात ध्यान में रखिए कि आपकी जो पॉजिटिविटी आप में है या नहीं। एंड देन लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, ये जो है आपको अभी से सीखना पड़ेगा। तो ये चेंज आपको तो इन ऑर्डर टू हैव अ वंडरफुल करियर यू नीड टू अप्लाई दिस चेंजेस, राइट? बट क्वेश्चन इज व्हाट इज करियर, राइट? ये भी तो सवाल है ना, करियर क्या है? अब करियर क्या है अगर मैं आपको पूछूं कि मतलब आप क्या समझते हैं, आपके मायने क्या है करियर के? मेकिंग मनी और परमानेंट जॉब, राइट? तो अगर मैं आपको पूछूं कि भाई क्या ऑप्शन है, आप यू वुड लाइक टू हैव मनी और परमानेंट जॉब, राइट? और द ऑप्शन है हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन एंड लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन। तो अगर ये फेस टू फेस सेशन रहता तो मैं मेरे स्टूडेंट को जब भी पूछता हूँ तो बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, वो कहते नहीं सर हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें हैप्पीनेस चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए, लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन। खैर बहुत बार बच्चों को पता नहीं होता, लेकिन कहते हैं कि सर यस हमें हैप्पीनेस चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, परमानेंट जॉब नहीं रहा तो चलता, सेटिस्फैक्शन चाहिए। लेकिन लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, अगर ऐसा बोलते हैं इट मींस वी आर लाइंग। पैसा नहीं चाहिए ऐसा भी नहीं, पैसा तो चाहिए, जीने के लिए पैसा तो चाहिए। परमानेंट जॉब नहीं चाहिए अगर आप कहोगे तो आप झूठ बोल रहे हो, ये तो सही है। तो मतलब आप मतलब सही, अगर आप इफ यू आर रियली ऑनेस्ट तो आपको पैसा भी चाहिए, परमानेंट जॉब भी चाहिए, लेकिन ये करते समय अगर खाली पैसा, उससे अगर हैप्पीनेस आपको नहीं मिला, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे ही विल नॉट बी हैप्पी। तो करियर जब आप ढूंढोगे, करियर जब आप, क्योंकि आप अब उस लेवल पे हो, आप उस थ्रेशोल्ड लेवल पे हो, आप जैसे कि जो बच्चे अभी एमएससी सेकंड ईयर में हो गए या फर्स्ट ईयर में हो गए, 1 साल बाद दे विल बी उस लेवल पे वो आएंगे, अपना करियर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको ये पैसा दिलाता है और परमानेंट जॉब है, लेकिन आर यू गोइंग टू हैव हैप्पीनेस आउट ऑफ दिस, आर यू गोइंग टू हैव अ सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ इट? अभी ये कब होगा मालूम है? हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन क्या कब होगा? जैसे कि मान लो आप देखिए, जैसे कि मान लो देयर आर सम स्टूडेंट, वो टीचिंग बिल्कुल उनको अच्छा ही नहीं लगता, राइट? नॉलेज है उनके पास लेकिन टीचिंग उनको अच्छा नहीं लगता, बच्चों के सामने खड़ा रहकर वो उनको मतलब दे आर नॉट कप अप दैट टी, राइट? अगर मान लो उनको फोर्सफुली हमने टीचिंग प्रोफेशन में ला रखा है, जैसे कि आजकल हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग बाय चॉइस टीचिंग प्रोफेशन में आ ही नहीं रहे, ज्यादातर लोग बाय फोर्सफुली कुछ नहीं मिल रहा है इसीलिए टीचिंग प्रोफेशन में आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ द स्टोरी। लेकिन आप अगर फिर आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, हर शाम में आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपको शुरुआत में तो बड़ा मुश्किल है टीचिंग जॉब, क्योंकि आप अगर समहाउ अगर आपका परफॉर्मेंस उस दिन अगर अच्छा नहीं रहा तो वो तो दिन उस रात की तो नींद आपकी खराब हो गई। तो पहले साल तो बड़े खराब होते हैं आप अगर बाय चॉइस अगर इस प्रोफेशन में नहीं आए तो। लेकिन कुछ लोग जो है बड़े बेशरम होते हैं, दैट इज डिफरेंट स्टोरी, कि भाई कुछ भी हो वो आराम से सोते हैं, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। बट इफ यू आर रियली सेंसिबल पर्सन, सेंसिटिव पर्सन, आपको नींद नहीं आएगी। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है,
आप क्या चाहते हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। इसलिए मैंने पहले बताया कि आपको अगर करियर चूज करने के पहले अपने आप को पहचानना पड़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। इफ यू कुड आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, देन ओनली यू विल बी एबल टू मैप, राइट। मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो एमएससी के बाद में आपके सामने यू हैव गॉट 3-4 ऑप्शन, तो आप देखिए कि भाई आप क्या चाहते हो। 3-4 ऑप्शन, ऐसा नहीं कि जो आया उसको समेट लिया, नो। आपको देखना पड़ेगा कि यू नीड टू बी चूजर, राइट। ऐसा नहीं कि भाई जो आया उसको लो, आप यू नीड टू बी चूजर। आप देखिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप आपकी रुचि किस सब्जेक्ट में है, किस एरिया में है, क्या आप रियली वो काम करते हुए आपको आनंद मिलेगा। अगर आनंद नहीं मिलेगा वो काम करते हुए, तो देन इट विल बी लाइक काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन फॉर यू। इनिशियल शुरुआत के दिनों में तो ठीक है, लेकिन आगे चलकर रूटीन सा काम हो जाएगा, एंड थ्रू आउट लाइफ वी विल नॉट बी हैप्पी। तो इसीलिए मेरा इंपॉर्टेंट ये कहना ये है कि भाई आप करियर चूज करते समय आप अपने आप को समझो, राइट। एंड लास्ट जो है ना, लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन का मतलब ये है कि आप उसी के साथ लाइफ लॉन्ग रह सकते हैं जिसमें आपको रुचि है, क्योंकि अदरवाइज आप रह नहीं सकते। मान लो आप क्या करोगे कि आप टीचिंग प्रोफेशन में आओगे, आपकी अगर रुचि नहीं तो आप यू विल बी फीलिंग सफोकेटेड। आप कुछ अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढना शुरू करेंगे। मान लो आपने 5 साल टीचिंग प्रोफेशन में आए, आप कंफर्टेबल नहीं है, 5 साल के बाद में आप जॉब छोड़ोगे। मान लो टीचिंग प्रोफेशन आपका चॉइस है, लेकिन एज ए लाइक आपके पास कोई लिंकेजेस नहीं है, पॉलिटिकल लिंकेजेस नहीं है, पैसा नहीं है। एज ए रिजल्ट ऑफ आजकल जैसा चलता है यूपी में पता नहीं, लेकिन आजकल सभी पूरी पूरी दुनिया में, पूरी कंट्री में, विदाउट मनी देर आर वेरी फ्यू। आई मीन आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता हूं मैं, लेकिन ये वास्तव है। बट देर आर सम इंस्टीट्यूशन, बट एट द सेम टाइम मैं आपको डिमोलराइज इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि देर आर सम इंस्टीट्यूशन, वहां पर आपको आपके टैलेंट को अभी भी, मतलब कॉलेजेस है, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस है कि आपको टैलेंट को पहचाना जाएगा। इफ यू आर टैलेंटेड देन ओनली यू विल बी सेलेक्टेड। तो ये आप मायूस नहीं होना, आप आपके पास टैलेंट है, टैलेंटेड लोग बड़े कम है, तो इसलिए यू शुड बी वेरी फॉर्चुनेट, लाइक हैप्पी कि टैलेंटेड लोग कम है। तो आपको डेफिनेटली आप अगर दरवाजा नॉक करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो दरवाजा आपके लिए खुलेगा ही खुलेगा। भले ही मैं कह रहा हूँ, हमें पता है कि पैसा चलता है, लिंक चलती है, लेकिन आप अगर टैलेंटेड हो आपको मौका बहुत मिलेगा। तो मान लो शुरुआत में आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको मौका नहीं मिला, कि किसी और जॉब में आप गए हो, 4-5 साल आपने वहां पर वेस्ट किए, फिर आपने टीचिंग में आए हो, तो क्या होगा, आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा नहीं ना। इसलिए राइट नाउ जॉब जॉब चूज करते समय अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो मैं समझ सकता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इफ यू आर हैविंग ऑप्शन, देन यू नीड टू चूज दैट ऑप्शन फॉर विच यू आर रियली इंटरेस्टेड इन। तो इसीलिए तभी आप लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन आप कर पाओगे, एंड लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन उस जॉब के साथ रहा तो ही आपके पास क्रेडिबिलिटी होती है। तो हम देखते देखिए, कोई बंदा है पिछले 20 साल से काम कर रहा है, लेकिन कोई क्रेडिबिलिटी नहीं उसकी उस एरिया में। लेकिन कुछ लोग हैं जो 10 साल में काम कर, लेकिन हम देखते हैं कि यार बड़े नाम कमा लिया उन्होंने। उसका रीजन वो है, जैसे कि सुशांत सिंह ने कम समय में अपना नाम कमाया था, बिकॉज ही वाज, अब इंजीनियरिंग छोड़कर वो चले गए थे, क्योंकि उनमें उसमें रुचि नहीं आ रही थी। वो ही एंटर इनटू द दिस वेरी fascinating world, and he was very successful as well, and it is unfortunate that he ended up with this kind of situation, but क्योंकि वो ही वॉज वेरी हैप्पी टू बिगिन विद, लेटर ऑन क्या हुआ हमें पता नहीं। तो हमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस में आपको रुचि है, एंड वही जॉब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सो दैट यू विल बी हैविंग लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन। तो ये मैंने बताया कि आपको स्कोप क्या होना चाहिए आपका। तो एकेडमिक, मॉनिटरी, सेटिस्फैक्शन लेवल, मैं ये कहूंगा कि यस, इसमें एकेडमिक मतलब क्या है, उसमें आपको एकेडमिक एनरिचमेंट, आपका जो नॉलेज है उसको यूटिलाइज करने का आपको मौका है क्या, यस, तो वो आपने चूज करना चाहिए। आपको पैसा भी जरूरी है, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि आप खाली सर्विस देते रहेंगे और पैसा नहीं, पैसा तो चाहिए ब्रेड एंड बटर के लिए, तो पैसा भी जरूरी है, एडिक्वेट पैसा भी मिलना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को कंपेयर करोगे दूसरों के साथ, तो आपको एडिक्वेट पैसा भी मिलना चाहिए, अदरवाइज यू वुड नॉट बी हैप्पी, राइट। एंड देन ओनली यू कैन एंड अप विद सेटिस्फैक्शन। आपके पास अगर बैलेंस है, मतलब आपके पास जो नॉलेज है उसको भी यूटिलाइज करने का प्लेटफॉर्म आपको मिलना है, आपने ऐसा जॉब आपने एक्सेप्ट किया कि जहां पर आपका जो एकेडमिक है, जो नॉलेज आपका है, उसको यूटिलाइज करने के लिए मौका मिल रहा है, एंड देन यू आर गेटिंग एडुकेट मनी एज वेल, राइट। देन ओनली यू कैन हैव द सेटिस्फैक्शन। एंड व्हाट आर द kind of options available? I'm telling you now what are the options. तो these are some of the new emerging areas like material science है, nanotechnology है, biomedical engineering है, oceanography है, biophysics है, robotics है, control system है, astrobiology है, space science and technology है, cognitive science है,
GeoInf for there are many, right? These are some of the areas in like which I have explored here. Like अभी आप देखिए, आप कहेंगे कि भाई आप देखो कैसे ना, आपका जो आपने जो भी है दैट इज योर फाउंडेशन। एमएससी में जो जो भी आपने कमाया है, जो भी एनरिचमेंट आपने किया है, दैट इज योर फाउंडेशन। नाउ इट इज अप टू यू हाउ यू आर मेकिंग यूज ऑफ योर फाउंडेशन टू कंस्ट्रक्ट द एंटायर बिल्डिंग, राइट? इट इज अप टू यू। ऐसा नहीं कि सबका फाउंडेशन फाउंडेशन करने के बाद सभी बिल्डिंग अच्छी नहीं होती। इट इज अप टू यू हाउ यू आर कंस्ट्रक्टिंग रेस्ट ऑफ योर करियर, राइट? तो ये जो ऑप्शंस रहेंगे, देयर आर मेनी एंड देयर आर ऑप्शंस एज वेल, बट मैंने कुछ ऑप्शंस आपके सामने रखे। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको कहां पर आपको बेटर प्लेटफॉर्म मिलेगा, किस प्लेटफॉर्म में आपको आपका नॉलेज यूटिलाइज करने का मौका मिलेगा, आपको पैसा भी एडिक्वेट मिलेगा, एंड देन एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू विल बी सेटिस्फाइड। लेकिन आपको मैं बताऊं, ये करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, यू मस्ट हैव एंड यू मस्ट बी। तो देखिए, ये अगर नहीं रहा तो आप उसमें ना तो आप अपने आप को उसके लिए तैयार नहीं कर पाओगे, या तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे। क्या चाहिए? यू मस्ट हैव स्टडी स्किल्स एंड स्टडी हैबिट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी स्किल ऐसा नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपने एमएससी में पढ़ाई की और हो गया। नो, थ्रू आउट योर लाइफ। इसीलिए तो कुछ लोग जो है ना टीचिंग फील्ड में आना नहीं चाहते। उनको उनको लगता है कि भाई टीचिंग फील्ड में कौन आए, क्योंकि आपको तो रात दिन पढ़ना है। क्योंकि आपको बताऊं, जब अभी भी जब मैं घर में पढ़ता हूँ नाउ, बिकॉज यू सी लाइक 32 इयर्स, आफ्टर 32 इयर्स, कभी कभी मेरी वाइफ बेचारी वो हाउस वाइफ है, वो कभी कभी मुझे कहती है कि अरे किस फील्ड में आप आए हो, अभी भी आप पढ़ते हो, अभी भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन मैं अब उनको समझाता हूँ कि देखो, दिस इज लाइक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आज भी मुझे पढ़ने की जरूरत है, अपने आप को एनरीच करने का मौका मुझे मिलता है। सो दिस स्टडी स्किल्स एंड स्टडी हैबिट्स नीड टू बी इनकलकेट थ्रू आउट योर लाइफ, एवरी डे आपको मतलब ये आदत लगानी होगी। हमें ना बुरी आदतें जल्दी लगती है, अच्छी आदतें हमें लगती नहीं है। तो आपकी ये अच्छी आदतें जो ना, यू नीड टू बी हैबिचुअल ऑफ रीडिंग, हैबिचुअल ऑफ स्टडिंग। ये जो है ना, आपको स्किल अर्न करना होगा। देन कंप्यूटर लिटरेसी, ऐसा नहीं कि देखिए आज आपको पता है कोविड 19 ने सबको हिलाकर रख दिया। पहले एक जमाना था जो हम बच्चों को कहते थे कि भाई आप मोबाइल पे मत रहिए, कंप्यूटर पे मत रहिए। अभी हम बच्चों को कहते हैं कि नहीं, यू यूज मोबाइल, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ। कितना कितना बदल गया है, राइट? तो आप देखिए, अगर जो लोग कंप्यूटर लिटरेसी लिटरेट थे, लिटरेट डजंट मीन दैट खाली ऑपरेट करना, राइट? थोड़ा सा एडवांस नॉलेज चाहिए। तो जो लोग नहीं थे, क्योंकि एक जमाना था कि इवन प्रोफेसर भी एमएस मतलब एमएस वर्ड में अभी भी कुछ सीनियर प्रोफेसर है, मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ, सीनियर लोग हैं, प्रोफेसर की बजाय सीनियर लोग हैं जो कंप्यूटर में कुछ टाइप नहीं करना जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, मतलब वेदर यू आर स्टूडेंट और यू आर सीनियर प्रोफेसर, वो तो कंप्यूटर लिटरेसी अभी इज नीड ऑफ द आवर। अभी तो ऑनलाइन एजुकेशन में अगर आप नहीं जानोगे तो फिर करोगे कैसे, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसलिए कंप्यूटर लिटरेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंटल रिचनेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। मैं बोलता हूँ कि आपको करते रहना है। एक्सपेरिमेंटल मतलब क्या है? करके देखना है। आप फेलियर को डरो मत, आप उसको आप चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट करिए। बहुत बार हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको याद होगा, आप जब छोटे होंगे, बचपन में आप जब पहली बार साइकिल सीखते होंगे शुरुआत में, तो आप डरते होंगे कि नहीं नहीं मैं गिर ना जाऊं, राइट? कुछ बच्चे हैं कि दे आर वेरी बोल्ड, तो डरने जैसे स्विमिंग है, मान लो आप गांव के अगर बच्चे होंगे, क्योंकि मुझे गुप्ता जी ने बताया कि रूरल साइड के बच्चे हैं, तो गांव में आप रिवर पे तैरने के लिए जाते होंगे। कुछ बच्चे हैं दे यूज्ड टू बी लाइक, वो उनके दिमाग में डर होगा कि मैं अगर वो रिवर में जाऊं कि डूब ना जाऊं, राइट? लेकिन कुछ बच्चे बेटर होते हैं, वो दे आर लीस्ट बॉदर्ड, वो बेचारे खुद बैठते हैं एंड दे लर्न, राइट? तो वो करते रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे फेलियर को डरो मत आप, क्योंकि फेलियर तो होंगे ही आप। क्योंकि फेलियर, देखिए मैंने बताया ना कि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। जब भी आप फेलियर होंगे तो आप खुश होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि फेलियर को आपने मतलब सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेट का मतलब ऐसा नहीं कि दारू पियो और मौज करो, नो। सेलिब्रेट का मतलब आप जो है उसको एंजॉय करो कि यस आई गॉट वंडरफुल लर्निंग एक्सपीरियंस आउट ऑफ दिस फेलियर। That kind of celebration I'm telling you, right? And then proficiency in medium of instruction, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, राइट? तो प्रोफिशिएंसी डजंट मीन दैट आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत बार हम ऐसा मिस इंटरप्रेट करते हैं। दुनिया में आपको बोलता हूँ, चाइनीज लोग पूरी दुनिया का कॉपीज कर लिया उन लोगों ने। जब मैं यूएस में था, मुझे पता है कि लोग, वो चाइनीज जो है अच्छी इंग्लिश बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन स्टिल मैं ऑस्ट्रेलिया में था, वहां पर भी सबसे ज्यादा चाइनीज है। अब इंडिया में नहीं आए वो, दैट इज वी आर फॉर्चुनेट। यूएस में भी सबसे ज्यादा चाइनीज है। क्यों? वो तो इंग्लिश बोल नहीं सकते, उसके बावजूद भी दुनिया में अपना बसेरा
बनाए रखा उन्होंने। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पास जो भी लैंग्वेज हो, डोंट बी डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। आप जिस लैंग्वेज में आप बोलना चाहते हो उसमें यू नीड टू बी वेरी एक्सप्रेसिव। आप हिंदी है, जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है, और वट एवर आपका जो भी लैंग्वेज है, उसमें आपको मतलब अच्छी तरीके से आपको अपने आप को पेश करना आना चाहिए। दैट दिस इज अगेन स्किल दैट यू नीड टू अर्न। ये स्टूडेंट लाइफ में भी करना इंपॉर्टेंट है। फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू माय फ्रेंड। आप देखिए फॉरेन कंट्रीज में प्रोफेसर कभी रिटायर्ड नहीं होते। कल अभी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक सॉरी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल वेबिनार चल रहा था। मेरे मेंटर जहां पर मैं मेरे पोस्ट डॉक और विजिटिंग किया, प्रोफेसर मुलचंद नानी, ही इज इंडियन रादर, ही इज अराउंड 70 नाउ, राइट, बट स्टिल ही इज एसोसिएटेड विद यूनिवर्सिटी। हमारे पास तो 60 के बाद में हम ऐसे बन जाते कि हम काम करना मुश्किल हो जाता हमारे लिए। देयर आर मेनी पीपल, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में आप प्रोफेसर को रिटायर ही नहीं करते। रीजन इज दे आर फिजिकली फिट, राइट। तो फिजिकल फिट अचानक नहीं बनते आप, आपको राइट फॉर्म, आपको आदत, दीज आर द हैबिट्स, राइट। आपको आदत लगानी पड़ेगी राइट फ्रॉम योर स्टूडेंट लाइफ। आप अगर हैबिचुअल नहीं रहेंगे एक्सरसाइज करने के लिए तो आप नहीं, अनफॉर्चुनेट क्या है, आप यंग जनरेशन, आप सूर्यवंशी हो। सूर्यवंशी का मतलब जानते हो? मैं मेरे स्टूडेंट को चिढ़ाता हूँ कि यार तुम लोग तो सब सूर्यवंशी हो। सूर्यवंशी का मतलब क्या है? जब तक सूरज नहीं निकलेगा तब तक आप उठते ही नहीं, रात में जागते रहोगे। लेकिन ये कितनी गलत आदत है। साइंस बताता है कि रात में 10:30 के बाद हमने नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं, जो एंजाइम सिक्रेशन होता है, जो हमारे माइंड के लिए, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए जो एंजाइम्स हमें लगते हैं, वो 10:30 और 11 अराउंड 11 के बाद ही सिक्रेट होना शुरू हो जाता है। उसके लिए हमें सोना जरूरी होता है। लेकिन ये सब पता है हमारे एक जनरेशन को, उसके बावजूद भी देयर इज बॉदर्ड। उनको लगता है देखे क्या करना है, जितना जिएंगे उतना जिएंगे, देयर इज बॉदर्ड। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक बच्चे जागते हैं, और सवेरे 10 बजे तक 11 बजे तक सोते रहते हैं। दिस इज वेरी बैड हैबिट्स माय फ्रेंड। बच्चों के लिए बोलता हूँ, इसको सुधारो, इसको चेंज करो। रात में 10-11 बजे सो जाओ, सवेरे 4 बजे पॉसिबल नहीं, 5 बजे पॉसिबल नहीं, 6 बजे उठिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, योगा करिए। आप यंग हो, आप जिम में जाइए, वर्कआउट करिए, अपने आप को फिट रखिए। आप अगर ये अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? आपको अगर ये आदत अगर अभी नहीं लगाओगे तो आप लगा नहीं पाओगे, राइट। एंड देन दिस यू मस्ट बी गुड रीडर, लिसनर, ऑब्जर्वर, एनालिस्ट, अर्नर एंड एक्शन टेकर। इसका मैं थोड़ा 5 मिनट लूंगा यहाँ पर, क्योंकि ये सभी के लिए लागू होता है। इट्स नॉट ओनली स्टूडेंट, थ्रू आउट लाइफ ये सभी के लिए लागू होता है। अगर आपको फेलियर को, अगर दिस इज साइंटिफिक वे टू एक्सेप्ट द फेलियर एंड साइंटिफिक वे टू क्रिएट पाथवे फॉर सक्सेस, राइट। ये पाथवे, ये आपको करना पड़ेगा। क्या रीडर का मतलब क्या है? कि आपको थ्रू आउट लाइफ पढ़ते रहना है। पढ़ना डजंट मीन दैट एवरी टाइम रीडिंग बुक, राइट। पढ़ने का मतलब ये है कि आप न्यूज़पेपर हो सकता है, राइट। आप लोगों को पढ़िए, राइट। आप किताबें पढ़िए, स्टोरीज पढ़िए। सो यू नीड टू बी वेरी हैबिचुअल। रात में देखिए, एक अच्छी गलत आदत जो मैं आज के यंगस्टर को जो है, वो रात को सोते समय भी मोबाइल अपने फ्रेंड के साथ में सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। एंड उठते समय सबसे पहले, उठते ही वो उनके बगल में ही अपना मोबाइल होता है। मोबाइल में पहले देखेंगे, सबको गुड मॉर्निंग कहेंगे, उसके बाद में बाकी का सब व्यवहार शुरू होगा। माय फ्रेंड, ये तो बिल्कुल दोनों आदतें कितनी गलत है। सोते समय आप एक अच्छा सा, आप जिसको अपना आइडियल मानते हो, उनका किताबें आप रखिए, उनको पढ़िए। वो लाल बहादुर शास्त्री हो सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो सकते हैं, महात्मा फुले हो सकते हैं, डॉक्टर आम्बेडकर हो सकते, जो भी आपको, जिसको भी आपके खुद के पिता हो सकते हैं, जो भी आप, जिनको भी आप आइडियल मानते हो, उनकी किताबें आप रखिए, उनको पढ़िए। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि 1 घंटे के लिए, 5 मिनट के लिए पढ़िए। पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है लिसनर। हमारी एक गलत आदत है कि हम किसी का सुनना ही नहीं चाहते। हम खाली बोलना जानते हैं, सुनना जानते ही नहीं है। दिस इज वेरी वेरी बैड। इट्स लाइक इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी। मतलब आपको दूसरे को सुनना पड़ेगा। अगर आपने आपको इनरीच करना है तो आप सुनोगे नहीं। पता कैसे चलेगा कि आप में खामियां क्या है? क्योंकि लोगों को लेट अलाउ अदर पीपल टू टेल अबाउट यू। लिसन, शांति से सुनो। लिसनर, यू नीड टू बी गुड लिसनर एंड यू नीड टू बी गुड ऑब्जर्वर एज वेल। क्या हो रहा है इर्द गिर्द आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है? आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो, क्रिकेटर हो आप, आपको देखना पड़ेगा कि सचिन तेंदुलकर कैसे खेल रहा है, विराट कोहली कैसे कर रहा है। आपको देखना पड़ेगा, कोई अगर बॉलर आपको बार बार आउट कर रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज हिज बॉलिंग एक्शन, वो आपको क्यों आउट कर पा रहा है। आपको सीरियसली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो रीडर, आपने रीड कर लिया, लिसन सुन लिया, ऑब्जर्व कर लिया, बंच ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास है। आपको आगे क्या करना है? आपको जो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में है उसको सिस्टमेटिकली आप एनालाइज करिए। इफ यू आर नॉट एनालाइजिंग दैट इंफॉर्मेशन, अगेन यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल।
आपके फेलियर को आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो भी आपने सुना, जो भी आपने पढ़ा, जो भी आपने ऑब्जर्व किया, उसको प्रॉपर्ली, वो इन्फॉर्मेशन जो है उसको आप प्रॉपर्ली एनालाइज करिए। एनालाइज करने के बाद आपको जो फेलियर आपके मिला है, आपको आगे आगे उसको कन्वर्ट करना है सक्सेस में। आपको एक वंडरफुल प्लान बनाना है। जो एनालिसिस किया उसका आप बढ़िया प्लान बनाइए। यू नीड टू बी गुड प्लानर। एंड खाली प्लान बना के नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग हैं कि सुनते हैं, पढ़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एनालिसिस भी करते हैं, प्लान भी करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। राइट? तो मतलब जैसे एक्शन नहीं लेते मतलब क्या है, सुन लेते कि हाँ बेटा सवेरे उठना चाहिए, हाँ सुन लेता है, तो सोच भी देता है कि नहीं कल से मैं उठूंगा। राइट? प्लान भी करता है कि दूसरे दूसरे दिन मुझे सवेरे उठना है, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव नहीं करता। राइट? तो क्या किस काम का, कोई काम का नहीं। तो आपको एक्शन टेकन, एग्जीक्यूटर भी, यू नीड टू बी गुड एग्जीक्यूटर। तो माय फ्रेंड, इफ यू रियली वांट टू digest your failure, if you really want to convert that failure into success, आपको जो है ना ये हैबिट्स होने चाहिए। एंड यू नीड टू बी गुड इन रीडिंग, लिसनिंग, ऑब्जर्विंग, एनालिसिस, प्लानिंग एंड एक्शन टेकिंग। तभी आप सक्सेसफुल होंगे, तभी आप फेलियर को डाइजेस्ट कर पाओगे। नाउ आई एम गोइंग टू, दिस इज बैकग्राउंड मैंने क्रिएट किया, आपका माइंडसेट बनाने की कोशिश मैंने की। आई डोंट नो हाउ फार आई कुड सक्सीड, बट आई थॉट लेट मी थोड़ा ब्रशअप कर लो आपके माइंड को। तो मैंने वो ब्रशअप करने की कोशिश की। अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया होगा तो मुझे माफ कर देना बच्चों, क्योंकि मेरा कोई आपको हर्ट करना मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। अब करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है? नाउ देयर आर वैरायटी ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज। ये बीएससी और एमएससी दोनों स्टूडेंट के लिए बनेगा। जैसे कि साइंटिफिक ऑफिसर एंड साइंटिफिक बी। अब कुछ कुछ जो है आपको पता होगा, कुछ जो है मैं आपको नई सीरीज से बताऊंगा। जैसे कि ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, सीएसआर के बहुत सारे लेबोरेटरीज है, बीआरसी है, टीआईएफआर है, कैट है, डीआरडीओ की बहुत सारे लेबोरेटरीज है, डीएसटी कुछ इंस्टीट्यूट है, उन्होंने कुछ एटोनोमस इंस्टीट्यूट उन्होंने किए हैं, इसरो है, यूजीसी खुद है, और यूजीसी की कुछ एटोनोमस इंस्टीट्यूट्स है, एंड देन दीज आर सम ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज। यहाँ पर जो है एमएससी फिजिक्स के बाद में, बीएससी के बाद में, यू आर गोइंग टू हैव पर्टिकुलरली, ये जो साइंटिस्ट बी की बात मैं कर रहा हूँ, दिस इज आफ्टर स्पेसिफिकली एमएससी फिजिक्स। आप एमएससी फिजिक्स के बाद में अपने आप को यहाँ पर पाओगे। एंड देन इफ यू रियली वांट टू गो फॉर पीएचडी, पीएचडी आप मान लो आप अच्छे इंस्टीट्यूट में करना चाहते हो, जैसे कि आईआईसी बेंगलोर में करना चाहते हो, आइजर 5 आइजर्स हमारे पास है, नाइजर्स भी है, कैफर में कर सकते हो, बीआरसी में बीआरसी का खुद का यूनिवर्सिटी उसने उन्होंने आपने खोल रखा है, आपको पता होगा। सीएसआर के ज्यादातर सीएसआर लैब अभी डीप यूनिवर्सिटीज बने, जहां पर आप पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। कुछ सीएसआर लेबोरेटरीज में इंटीग्रेटेड पीएचडी बीएससी के बाद भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन उसके लिए यहाँ अगर जाना है तो नेशनल लेवल का नेस्ट या जेस्ट एग्जामिनेशन है, आपको वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। वो उसकी प्रोसीजर आपको, आप अगर गूगल में टाइप करोगे जेस्ट या नेस्ट, तो आपको उसका पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा, आप उसमें अपीयर हो जाइए। आप अगर यहाँ पर अगर पीएचडी को ले जाते हो तो यू आर गोइंग टू गेट वंडरफुल फेलोशिप। आजकल तो आपको मतलब मोर देन 25,000, मिनिमम 25,000 आपको फेलोशिप मिलेगी, उससे बल्कि इससे ज्यादा ही मिलेंगी। एंड देन यू विल बी लाइक एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग, आपको मैं बताऊं। देन अगर मान लो आप फेडअप हो चुके, टेक्निकल एजुकेशन आप नहीं करना चाहते हो, आप एमसीए कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो। आपको अगर एमटेक करने की भी मौका है, देयर आर मेनी, इवन आईआईटी में एमएससी के बाद आपको एमटेक करना चाहते हो, आप एमटेक कर सकते हो। आपको लाइक मान लो आप यू आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ गोइंग टू द आईआईटीज फॉर एग्जांपल, आफ्टर 12 आप जा नहीं पाए, तो बीएससी के दरमियान, एमएससी के दरमियान आप गेट क्वालिफाई करिए, एमटेक करिए। आप चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन आई विल नॉट एडवाइज यू आफ्टर एमएससी, आई विल नॉट एडवाइज यू टू गो फॉर एमटेक, गो फॉर पीएचडी। इफ यू रियली वांट टू गो टू आईआईटी, आप आईआईटी में पीएचडी के लिए जा सकते हो। टीचिंग प्रोफेशन लाइक आपको आना चाहते हो, नेट सेट के लिए आप डेडिकेट कर सकते हो, लेकिन अब पता नहीं, मैं जनरली ये एडवाइस करता नहीं। उसका रीजन ये है कि नेट सेट होने के बावजूद भी वी नेवर नो। अभी तो आपको पता होगा कि 2021 से यूजीसी ने मैंडेटरी किया है कि अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर आप टीचिंग पोजीशन आप अगर हासिल करना चाहो तो आपको पीएचडी मैंडेटरी है। तो मेरा मेरा सजेशन ये रहेगा कि इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम, बिकॉज यू नेवर नो, नेट सेट में ऐसा नहीं ना कि आप जैसे कि एमएससी में आप आ गए हो तो आप पास ही होंगे। राइट? यहाँ ऐसा नहीं है, आप नेट सेट में आप क्वालिफाई होंगे, यू नेवर नो, स्लेट होगा आपके पास। हमारे महाराष्ट्र में सेट है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पीएचडी के लिए ज्वाइन करिए। पीएचडी करते समय यू कैन ट्राई, यू कैन, अगर 24/7 तो आप पीएचडी का काम करोगे नहीं, वहां भी तो पढ़ना ही है। तो आप वाइल डूइंग पीएचडी यू कैन अपीयर फॉर नेट। राइट? नेट का एक अच्छा बेनिफिट ये भी है, पीएचडी ज्वाइन करके आप अगर आप जहां पर एमएससी कर रहे हो वहां पर आप कर सकते हो। या तो मैं आप तरीका बताऊंगा आपको क्या करना है।
तो आप नेट अगर आप पीएचडी ज्वाइन करो, नेट के लिए कोशिश करो, बाय चांस अगर यू आर फॉर्चुनेट जेआरएफ अगर मिलता है तो यू आर गोइंग टू गेट वंडरफुल फेलोशिप एंड देन यू कैन डू वंडरफुल आई मीन पीएचडी, राइट? अगर आप मान लो आपको ये कुछ करना नहीं है, देर आर ये ऑप्शन तो आपको पता ही होगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम या यूपीएससी है या आपका लोकल स्टेट गवर्नमेंट का जितने भी है पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके एग्जाम्स आप दे सकते हो, बैंक में आप इंटरेस्टेड हो। लेकिन मैं जनरली बच्चों को ये एडवाइस नहीं करता, रीजन ये है कि आपने इतना समय बिताया है साइंस पढ़ने में, तो व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम हियर? तो आई जनरली मैं सजेस्ट नहीं करता और आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा। आई वुड एडवाइज यू टू गो फॉर रिसर्च, क्योंकि रिसर्च में अच्छे लोग आते नहीं है, टीचिंग में अच्छे लोग आते नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप सभी अच्छे स्टूडेंट आप पीएचडी करो और आप टीचिंग में आओ, क्योंकि दुनिया को सुधारने वाले टीचर होते हैं, उसमें तो अच्छे लोग बड़े जरूरत होता है ना। तो आगे और एक आपके पास स्पेशलाइजेशन मुझे पता नहीं क्या है, अगर आपके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक स्पेशलाइजेशन है तो it is MSc Physics with electron specialization is being treated at par with BE Electronics. Of course it is not equivalent, क्योंकि MSc डिग्री ये बड़ी डिग्री होती है BE से, मैं इक्विवेलेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट क्योंकि यहाँ BE का 4 साल का है और MSc में 5 साल बिताते हैं BSc के बाद। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेशलाइजेशन आपने किया हो फिजिक्स में तो आपको टेलीफोन एक्सचेंजेस, इंडियन रेलवे में भी आप सर्विस इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर बोल के आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है। एंड देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज, लाइक आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स आप अगर किया हो, मटेरियल साइंस में आपने एमएससी किया हो, तो गरवारे, ये तो कुछ औरंगाबाद की इंडस्ट्रीज है, इसलिए हमारे बच्चों के लिए मैंने लिखा था ये। लेकिन बाहर आपके स्टरलाइट इज वन ऑफ द मल्टीनेशनल्स, आपको पता होगा, जो ऑप्टिकल फाइबर में काम अभी औरंगाबाद में है। बट ये आप देख सकते हो कि आप जिस एरिया में हो, आपके इर्द गिर्द जैसे कि क्या क्या सॉलिड स्टेट या जो आपका नॉलेज है उससे रिलेटेड क्या कंपनीज हैं, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। देन अगर आपको एमटेक करना है, जैसे कि मैंने बताया एमटेक फिजिक्स के लिए आपको बीटेक, एमएससी और गेट, आपको मतलब अभी से गेट, अगर आप रियली आईआईटीज में जाकर एमटेक करना चाहते हो तो राइट फ्रॉम एमएससी फर्स्ट ईयर से ही आपको गेट की तैयारी करनी पड़ेगी, सो दैट ये स्टाइपेंड तो खैर ये पुराना, अभी तो अपडेटेड है, क्योंकि 25 अभी काफी मतलब मिनिमम, ये जो स्टाइपेंड मैंने लिखा ये मिनिमम लिखा है, it varies from institution to institution, right? And then atmospheric, पुणे यूनिवर्सिटी में, हमारे बगल में पुणे यूनिवर्सिटी है, अगर इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन एटमॉस्फेरिक फिजिक्स तो यहाँ पर आप एमटेक के लिए आ सकते हो। यहाँ पुणे यूनिवर्सिटी का खुद का हमारा उनका एंट्रेंस टेस्ट है, आप अगर इंटरेस्टेड हो एटमॉस्फेरिक फिजिक्स में आ सकते हो। आईआईसी बेंगलोर में आप पीएचडी के लिए जाना चाहते हो तो उनका एक तो गेट है नंबर 1, दूसरा उनका खुद का भी एंट्रेंस है। तो आप सोच सकते हो कि आप आईआईसी बेंगलोर का वेबसाइट देखिए एंड सोच देखिए कि वो व्हाट आर द मोड्स थ्रू व्हिच दे आर एनरोलिंग स्टूडेंट्स फॉर पीएचडी। आइजर है, आइजर जैसे मैंने बताया कि आइजर आजकल साइंस एजुकेशन के लिए बड़ा डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन आया है, पिछले काफी सालों से हमारे पास आया है। तो अगर आप अगर आइजर में पीएचडी करना चाहो तो आप आइजर में तो इंटीग्रेटेड पीएचडी भी है, अगर मान लो आप बीएससी के बाद भी वहां पर इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए जा सकते हो, एमएस पीएचडी के लिए जा सकते हो, एमएससी पीएचडी के लिए जा सकते हो। तो आपको देखना पड़ेगा कि वेदर दे आर रिक्रूटेड ऑन द ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गेट, क्योंकि मुझे पता है कि वो गेट भी कंसिडर करते हैं एंड देन उनका खुद का भी टेस्ट होता है। तो आप देख सकते हो कि आप मतलब आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप उनकी वेबसाइट जाके आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। सीएसआर लेबोरेटरी मैंने बात की थी कि देयर आर मेनी सीएसआर लेबोरेटरीज नाउअडेज, दे हैव कन्वर्टेड देमसेल्फ इन विदिन यूनिवर्सिटीज। तो वहां पर ये बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए इतने सारे, अब देखिए आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, इसका मतलब बायोलॉजिकल साइंसेस में जान नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च ग्रुप होते हैं, वहां पर फिजिसिस्ट की जरूरत होती है, यहाँ पर भी आप पीएचडी के लिए जा सकते हो। These are some chemical sciences related CSIR laboratories. There are some physical sciences related CSIR laboratories. आप आइडेंटिफाई करिए कि आप किस लेबोरेटरी को ज्वाइन करना चाहते हो पीएचडी के लिए एंड उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए आप। इंजीनियरिंग साइंसेस के लिए कुछ मतलब देर आर very huge number of CSR laboratories across the country. If you are really passionate to do PhD in those institutions, you see, go visit those institutions and उनकी वेबसाइट आप विजिट करिए एंड देखिए कि उनकी एलिजिबिलिटीज क्या है। मैं यूजीसी के कुछ अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा था, इंटर यूनिवर्सिटी आपको शायद पास में गिरती होंगी, आईयूएससी में आप पीएचडी कर सकते हो, वहां पर भी आप पीएचडी के लिए आपको मौका मिल सकता है। एंड देन यूजीसी डीए की
4 अलग-अलग कंसोर्टियम है, एक इंदौर में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, कल्पक्कम में है। यहाँ पर भी आप पीएचडी कर सकते हो। आप इंटरेस्टेड, आप देखिए कि आपका फोकस क्या है। आप इंस्टीट्यूशन का आप देखिए कि उनके फोकस एरिया क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, अकॉर्डिंगली यू कैन चूज द इंस्टीट्यूशंस एंड देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। डीआरडीओ के लैबोरेटरीज है, डीआरडीओ में थोड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं क्योंकि उनमें बड़ा कॉन्फिडेंशियल रिसर्च करते हैं वो, बट स्टिल यू कैन जॉइन डीआरडीओ एज वेल फॉर पीएचडी। ये कुछ कुछ मैंने लेबोरेटरीज आपको बताया, वहां पर भी आपको मौका मिल सकता है इफ यू आर रियली फैसिनेट। आप देखिए कि स्पेसिफिक आपके इर्द गिर्द में कौन सी डीआरडीओ लेबोरेटरीज है, आप वहां पर जाकर मिलिए, आपका इंटरेस्ट बताइए, या तो सबसे पहले आप इंटरनेट पे उनकी वेबसाइट पे जाकर आप डिटेल ढूंढिए एंड देन यू कैन सी लाइक वेदर यू विल बी गुड कैंडिडेट फॉर देम। सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना पड़ेगा कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जाओगे, आपको अपने आप को बताना पड़ेगा कि वेदर यू आर गोइंग टू बी वैल्यूएड लाइक गुड कैंडिडेट फॉर वैल्यूएडिशन फॉर देम। मतलब उनकी जो इंस्टीट्यूट, मान लो रिसर्च ग्रुप है, आप जाने के बाद उस रिसर्च ग्रुप का क्या फायदा होगा, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन यू आर गोइंग टू प्रोवाइड, वो पहले इसीलिए सॉक एनालिसिस में आप बताओगे कि भाई आपके पास क्या है जो बाकी लोगों के पास नहीं है। And then whenever you will be approaching, you can tell them, you can introduce them that this is what the special features I am having with me, this is going to value addition for your group, right? Then only they will accept you. So उस टाइप का एनालिसिस अपना करिए। ये डीआरडीओ की बहुत सारे लेबोरेटरीज है जिसकी लिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बोथ इंस्टीट्यूट ऑफ कलकत्ता एक अलग इंस्टीट्यूट है, दिस इज द सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फंडेड बाय जगदीश चंद्र बोस इन 1917। डीम यूनिवर्सिटी का स्टेटस है, वन ऑफ द वेरी वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री। रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम उनके पास है, कुछ एमएससी के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, मतलब समर कैंप और विंटर कैंप। आप अगर ज्वाइन करना चाहो तो पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं एमएससी स्टूडेंट के लिए, लाइफ साइंसेज, फिजिकल साइंसेज एंड केमिकल साइंसेज स्टूडेंट के लिए। एवरी ईयर मई टू जून में ये प्रोग्राम होते हैं। तो जब ये मई टू जून में करते हैं, इसका मतलब जनवरी फरवरी में ये एडवर्टाइजमेंट आएगी, मोस्ट ऑफ द टाइम टाइम्स में आएंगी, उनकी वेबसाइट पे भी आएगी। आपको अगर इंटरेस्टेड हो आप ज्वाइन करिए, क्योंकि अगर मान लो इस इंस्टीट्यूट में आप जाना चाहो, अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर समहाउ आप अटेंड किया कर पाओ, तो क्या होगा, यू विल बी बेटर कैंडिडेट फॉर देम टू एब्सॉर्ब फॉर पीएचडी, राइट? तो आप देखिए ये उसके डिटेल्स है, वो डिटेल्स आप अगर देखिए, मैंने बताया कि लास्ट डेट उसका मार्च होता है एवरी ईयर। ओके, इसका मतलब क्या है कि एडवर्टाइजमेंट कब होगा, वो जनवरी में एडवर्टाइजमेंट होगा। तो आप जनरली जनवरी फरवरी में एडवर्टाइजमेंट देखें तो नहीं करिए एंड देन अप्लाई करिए। एंड देन दिस इज एक डीएससी का एक स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूट है ये, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलोर में है। डीएसटी ने खास इंस्टीट्यूट बनाया गया है। यहाँ पर भी इसमें इंजीनियरिंग साइंसेस, मटेरियल साइंस में ज्यादातर रिसर्च होता है। यहाँ पर भी पीएचडी डिग्री के लिए आप एनरोल करते हैं अपने आप को, एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, मतलब एमएस फॉलोड बाय पीएचडी। आप अगर बीएससी कोई आपके पास, आपका अगर यंगर ब्रदर सिस्टर है, आप चाहते हो कि वो वहां पर इंटीग्रेटेड पीएचडी करे, आफ्टर बीएससी दे कैन ज्वाइन। आप अगर एमएससी हो गए हो तो आप स्टेट में आप पीएचडी के लिए ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आप फिर से वो जेस के थ्रू लेंगे। ये एडवर्टाइजमेंट था एवरी ईयर अराउंड 31 मार्च में उनका लास्ट डेट होता है। आप देखिए, अगर आप जाना चाहते हो तो अगेन जनवरी फरवरी में उनकी एडवर्टाइजमेंट आएगी, आप जा सकते हो वहां पर एमएस और पीएचडी करने के लिए, आप इफ यू आर इंटरेस्टेड। ओके, एंड देन वो जैसे मैंने बताया कि उनके पास भी, जैसे मैंने बोस इंस्टीट्यूट ऑफ कलकत्ता के बताया, ऐसे इनका भी बीएससी एमएससी स्टूडेंट के लिए कुछ समर कैंप होते हैं, विंटर कैंप होते हैं। तो वहां पर बेसिकली रीजन क्या होता है ये समर विंटर कैंप ऑर्गेनाइज करने का? मेन रीजन ये होता है कि दे वांट टू आइडेंटिफाई गुड एमएससी एंड बीएससी स्टूडेंट। तो आप अगर देखोगे उनकी वेबसाइट पे तो आपको पता चलेगा कि दे आर हैविंग गुड कपल ऑफ विंटर एंड समर प्रोग्राम। समर में आप 1 महीना जाकर आप रह सकते हो, आपको जाने आने का किराया मिलेगा। इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड यू आर गोइंग टू गेट टू एंड फेयर टिकट्स, एंड देन यू आर ऑल लोकल हॉस्पिटैलिटी, आपको फ्री अकोमोडेशन होगा, खाने पीने का खर्चा मिलेगा। 1 महीना आप वहां पर जा सकते हो, सीख सकते हो, एंड देन दे आर गोइंग टू टेस्ट यू। एंड अगर अच्छा परफॉर्म कर पाओ तो यू विल बी अब्सॉर्ब्ड देयर एज ए पीएचडी स्टूडेंट। तो अगर आप रियली पैशनेट टू गो इन दिस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, आप ये कोर्स करना ना भूलिएगा। ये जेस्ट की इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, ये मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप देख सकते हो वेबसाइट पे। आप अगर जेस्ट अगर ज्वाइंट इंट्रेंस ट्रेनिंग स्क्रीनिंग टेस्ट, ये अगर आप टाइप करोगे तो आपको उसका डिटेल मिलेगा। मैं एडवाइस करूंगा आपको कि आप आपको जस्ट एक इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ क्या क्या ऑप्शंस है, राइट? तो आप देखिए, एंड देन इंटीग्रेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशन के नाम मैंने बताया, वो सब इंस्टीट्यूट में इसके थ्रू ही आपको एडमिशन मिलेगा। सर मैं These are some of the institutions, सर जो इंस्टीट्यूशन है जहां पर, यस
Sir, आप कुछ बता। yes, sir. 5 more minutes, sir. We will start interaction session after that because you ओके ओके, ठीक है ठीक है। sir, 5 more ओके minutes. ओके, ठीक है, Okay, sir. चलिए कोई बात नहीं। तो ये सारे मौके हैं आपको। तो मैं क्या करूंगा अभी, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ये है एस्ट्रोफिजिक्स है बेंगलोर का, यहाँ पर भी आप पीएचडी कर सकते हो। आयुका है, आयुका में भी आप पीएचडी पीएचडी के लिए जा सकते हैं। इनके पास भी समर विंटर प्रोग्राम होते हैं। ये समर प्रोग्राम है आयुका के, जो आप एवरी समर में आप 5 वीक के लिए जा सकते हैं। आप अगर वहां गए तो आपको पीएचडी के लिए आराम से आपको मौका मिल सकता है। ये एक दूसरा वोकेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम है वीएसवी आयुका का। आयुका में बहुत सारे प्रोग्राम है आयुका पुणे में, इफ यू आर एस्ट्रोफिजिक्स में आप इंटरेस्टेड हो। बीआरसी में 1 ईयर पोस्ट रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में एमएससी के बाद में 1 साल का एक 1 ईयर प्रोग्राम है, डिप्लोमा प्रोग्राम। आप चाहो तो उसमें एमएससी में अगर आपको 60% मार्क्स है तो वहां पर भी जा सकते हो आप। बीआरसी में भी एक 1 ईयर ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, बट जो न्यूक्लियर साइंस इंजीनियरिंग में जो इंटरेस्टेड वहां जा सकते हैं। समीर इंस्टीट्यूट है जहां पर आप आपको पता होगा कि समीर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में 3 कैंपसेस है। यहाँ पर भी आप, जहां पर ज्यादातर माइक्रोवेव में रिसर्च होता है, वहां पर भी आप पीएचडी ज्वाइन कर सकते हो। उसके ये साइंटिस्ट बी का, वहां पर साइंटिस्ट बी के ऑप्शन होंगे आपके पास। आईआईटीज का तो मैंने बताया आपको। सीमेट है, सेंटर फॉर मटेरियल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, 3 है इंडिया में, हैदराबाद, पुणे, त्रिशूर। यहाँ पर भी आप पीएचडी के लिए जा सकते हो। एंड मोर ओवर यू कैन गो देयर एज ए साइंटिस्ट लेवल, यहाँ अपॉइंटमेंट भी हो सकती है। नाइलेट है जहां पर आप अगेन वहां पर आप एमटेक कर सकते हो। आप अगर एमएससी फिजिक्स किया हो तो आप एमएससी एमटेक वहां कर सकते हो, एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हो। साइंटिस्ट बी की अपॉर्चुनिटीज वहां पर आपको मिल सकती है। एंड देन इफ यू आर रियली वेरी एस्पिरेंट, देन आप पीएचडी के बाद अगर अच्छी पीएचडी आपने किया तो आपको स्टार्टअप बहुत सारे, जैसे डीएई है, डीएसटीएस स्टार्टअप, आपको ग्रांट मिलेगा, काफी पैसा मिलेगा। मतलब अराउंड 30 to 40 लाख रुपीज आपको मिल सकते हैं पीएचडी के बाद में। पीएचडी के पहले नहीं, पीएचडी के बाद में क्या क्या आपको मिल सकता है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, ये तो मैंने बताया आपको। कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटी का मैं बताना चाहूंगा क्विकली। फॉरेन यूनिवर्सिटी का ऐसा है कि आपको पता होगा कि देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल इन फॉरेन यूनिवर्सिटी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास जीआरई चाहिए, आपके पास टोफेल चाहिए, आपके पास आईएलटीएस चाहिए। तो कभी कभी ऐसा है कि आप जनरली बाहर जाने के लिए 4 साल का डिग्री चाहिए। लेकिन अगर आपके जिस इंस्टीट्यूट में आपने पीएमएससी सॉरी बीएससी किया है, आपने मान लो 3 साल का बीएससी है आपका, 3 साल के बीएससी के में आप पीएचडी करने के लिए जाना चाहते हो, अगर आपके इंस्टीट्यूशन को नैक का ए ग्रेड अगर है तो स्टिल दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट यू, राइट, इवन आफ्टर 3 years आल्सो। आप एमएससी के स्टूडेंट हो, सीधा पीएचडी के लिए ज्वाइन कर सकते हो उनके पास। तो आपको जीआरई का स्कोर अच्छा होना चाहिए, या तो आप जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, जैसे कि यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, जितने भी टॉप कंट्रीज है, टॉप यूनिवर्सिटीज है, आपको वहां पर टोफेल जरूरी है। लेकिन आजकल देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज, दे आर एक्सेप्टिंग, दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग आईएलटीएस आल्सो instead of TOEFL. And moreover, these are some of the universities, good universities wherein you can do. And then these are the Fulbright Nehru Fellowship, यहाँ पे ये भी एक ऑप्शन है स्टूडेंट के लिए। ये रिसेंट एडवर्टाइजमेंट आया है, देखिए। मास्टर स्टूडेंट के लिए 1-2 साल के लिए आप फुल ब्राइट में जा सकते हो। अगर आप पोस्टडॉक के लिए 6 to 9 मंथ के जा सकते हो। आप अगर टीचर हो तो आप 6 महीने के लिए जा सकते हो। आप अगर एडमिनिस्ट्रेटर हो, ये पोस्टडॉक के लिए मतलब 2 महीने तक जा सकते हो, 2 साल तक जा सकते हो। आप अगर एडमिनिस्ट्रेटर हो तो 2 वीक के लिए जा सकते हो। सो दिस इज लाइक गाइड। इसका लास्ट डेट अभी इस साल का 15 जुलाई है। हो सकता है अभी कोविड-19 को सामने रखते हुए अभी इसका बढ़ सकता है। ये उसके अलावा भी इंटरनेशनल बहुत सारे फेलोशिप है, जैसे हम्बल फेलोशिप है। जेएसपीएस में, हम्बल तो खैर टीचर के लिए है, जेएसपीएस में स्टूडेंट जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन, देयर आर मेनी ऑस्ट्रेलियन फेलोशिप फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। कॉमनवेल्थ फेलोशिप है स्टूडेंट के लिए। There are many bilateral program in foreign universities, and सबसे important क्लोज करने के पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि there are many यूरोपियन यूनिवर्सिटीज एंड एशियन यूनिवर्सिटीज। यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में फ्रांस है, जर्मनी है, राइट, पोलैंड है। देयर आर मेनी कंट्रीज। ये एशियन में साउथ कोरिया है, ताइवान है, हांगकांग है, सिंगापुर है, जहां पर इवन आपके पास जीआरई नहीं है, टोफेल नहीं है, आईएलटीएस नहीं है, उसके बावजूद भी आपको, आप अगर पीएचडी के लिए जाना चाहो तो जा सकते हैं। उसके लिए तरीका क्या है मैं बताता हूँ। तरीका ये है कि आप आइडेंटिफाई करिए कि आपको कहाँ जाना है। आप जो है पहले तो कंट्री आइडेंटिफाई करिए, देन कंट्री में से यूनिवर्सिटीज आइडेंटिफाई करिए, एंड देन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जाकर वो प्रोफेसर को आइडेंटिफाई करिए, उनको आप लिखिए। लेकिन लिखते समय आप अपना एक बायोडाटा, एक अच्छा सा बायोडाटा आप लिखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बायोडाटा में आप लिखिए कि आपने एमएससी के दरमियान आपने क्या हटकर किया।
आपके पास ऐसा क्या है, इसलिए स्टॉक एनालिसिस का मैंने बताया, आपके पास हटकर क्या है कि जिसकी वजह से आपको मौका मिलेगा। आपको जैसे कि वहां जाने के बाद वो रिसर्च ग्रुप के कुछ खामियां आप आइडेंटिफाई करिए कि जिस रिसर्च ग्रुप में आप जाना चाहते हो उसके इश्यूज क्या है, वेदर योर एडिशन इज गोइंग टू प्रोवाइड सम वैल्यू एडिशन टू देम, वो आप सोचिए। एंड यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद दोस टीचर्स, दोस प्रोफेसर्स। फॉरेन कंट्रीज में ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर होते हैं कि उनके खुद के, जैसे कि एमएस पीएचडी की जाने के लिए देयर आर टू ऑप्शन, वन इज यूनिवर्सिटी फेलोशिप, राइट, दे आर हैविंग फीस वेवर, आपको कॉम्पेंसेशन फेलोशिप होती है डेली वेजेस, डेली एक्सपेंसेस के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी प्रोफेसर इज गोइंग टू हैव सम ओन प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट में भी वो पीएचडी स्टूडेंट को आप वो स्पॉन्सर, ऑलमोस्ट 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 मैं कंक्लूड ही कर रहा था। तो मैं बच्चों को बता रहा था कि अगर आपके पास आपके पास अगर जीआरई टोफेल नहीं है, आईएलटीएस नहीं है, तो आप फॉरेन में जा सकते हैं एमएस पीएचडी के लिए, वो मैं बता रहा था। तो यस यू कैन गो, स्टिल यू कैन गो। जैसे कि मैंने बताया कि आप यू जस्ट आइडेंटिफाई प्रोफेसर्स, क्योंकि उनके पास, मैंने बता रहा था कि उनके पास काफी ग्रांट्स होते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट में, सो दे कैन एक्सेप्ट यू, दे कैन प्रोवाइड यू फीस वेवर एज वेल एज मेंटेनेंस के लिए आप मंथली कुछ फेलोशिप भी आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड देन आप तो क्या करना पड़ेगा, आपको खाली उसके लिए क्या, अपने आप को समझकर अपना आप देखिए कि व्हाट काइंड ऑफ strength you have, so that you could be a good value addition for them, that particular group, and accordingly you start writing that email. I'm sure if you start today, आप जो भी अभी फाइनल के बच्चे होंगे, if you start today, within 2-3 months at least you are going to get one or two invitation. So don't, I'm damn sure, राइट। उसके अलावा कुछ एरास्मस मुंडस की कुछ फेलोशिप्स है जो आपको पता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन आपका जो पेरेंट यूनिवर्सिटी है गोरखपुर यूनिवर्सिटी, उनके पास सेंटर होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, बट यू कैन सर्च ऑन गूगल। एरास्मस मुंडस के बहुत सारे प्रोग्राम्स है जिसमें आप पीएचडी के लिए जा सकते हो। आप अगर पीएचडी स्टूडेंट हो 1 साल के लिए जा सकते हो, एमएससी स्टूडेंट हो 1 सेमेस्टर के लिए जा सकते हो, पीएचडी स्टूडेंट भी जा सकते हैं। देयर आर मेनी फेलोशिप्स। ये कुछ यूनिवर्सिटीज है जिसके समर स्कूल होते हैं। समर स्कूल में जैसे टोकुशिमा, ये मैं यूनिवर्सिटीज हमारे कोलैबोरेटर्स है, इसलिए मैंने ये 3 यूनिवर्सिटी के नाम बताया, टोकुशिमा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ताइवान, जहां हमारा कोलैबोरेशन है। तो इनके हमारे स्टूडेंट रेगुलर इनके पास जाते हैं समर प्रोग्राम के लिए। तो दे स्पॉन्सर, समटाइम दे स्पॉन्सर कंप्लीटली और समटाइम दे स्पॉन्सर पार्शियली। पार्शियली का मतलब ये है कि वो आपको वहां का एक्सपेंसेस देंगे, ट्रैवल जो है, एयर ट्रैवल जो है डीएसटी स्पॉन्सर कर सकता है। मान लो आपका अगर सिलेक्शन होता है तो डीएसटी कैन प्रोवाइड यू एयर ट्रैवल एंड लोकल, वो दे सकते हैं। तो इट वुड बी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू विजिट फॉरेन कंट्रीज फॉर दिस काइंड ऑफ समर प्रोग्राम्स, राइट। देयर आर मेनी प्रोग्राम्स अवेलेबल एंड देन देयर आर मेनी फेलोशिप। ये मैं क्विकली जा रहा हूँ, ऐसे इतने सारे फेलोशिप्स है, पोस्ट डॉक के लिए, एमएससी के लिए, एमएस के लिए, पीएचडी के लिए, देयर आर मेनी फेलोशिप। सम ऑफ द वेरी फेमस फेलोशिप लाइक जर्मन एकेडमिक डैड फेलोशिप है, अलेक्जेंडर होमर्स, तो ये खैर टीचर्स के लिए है। देन मैरी क्यूरी है, ये टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी है। एंड देन जो मेन फेलोशिप मैं बताना चाहूंगा आपको, जेएसपीएस है जिसके थ्रू आप जा सकते हो। एमएचआरडी का फेलोशिप है जिसके थ्रू आप फॉरेन जा सकते हो पीएचडी के लिए, एमएचआरडी का फेलोशिप्स है। There are many students I have seen, and then joint जो मान लो आप अगर पीएचडी ज्वाइन करते हो और आप ऐसे टीचर के पास ज्वाइन करते हो यूनिवर्सिटी में आज जिनके इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, तो देर आर मेनी लाइक जॉइंट कोलैबोरेटिव ऑप्शंस अवेलेबल नाउअडेज थ्रू डीएसटी, राइट। थ्रू डीएसटी के थ्रू आप जॉइंट, मतलब ऐसी कोई कंट्री नहीं है, डेवलप कंट्री नहीं है जिसके साथ इंडिया का कोलैबोरेशन, बायलैटरल कोलैबोरेशन नहीं है। तो ये बायलैटरल कोलैबोरेशन में आपके टीचर जा सकते हैं, स्टूडेंट जा सकते हैं, राइट, फ्रॉम 1 मंथ टू 6 मंथ, राइट। और वो आप उन्हीं को भी बुला सकते हो। सो लाइक दैट देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, राइट। अब मैं स्टूडेंट को एडवाइस करूंगा कि यू कीप ऑन विजिटिंग डीएसटी वेबसाइट एवरी एटलीस्ट वंस इन अ वीक, so that you will come to know what kind of opportunities available. महिला जो गर्ल स्टूडेंट होगी, ये वुमेन्स इन स्टेम, इसमें भी मतलब ये स्टेम क्या है आप बताऊं, स्टेम है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। ये वुमेन्स के लिए स्पेसिफिकली प्रोग्राम था। ये तो खैर पुराना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एवरी ईयर इंडो यूएस फेलोशिप है। ये आप एमएससी के बाद में पीएचडी के लिए आप जा सकते हैं यहाँ पर 1 साल, मतलब इफ यू आर पीएचडी एनरोल स्टूडेंट, एमएससी के बाद में आप यहाँ पर इंडिया में पीएचडी कर रहे हो, अंडर दिस फेलोशिप यू कैन गो फॉर 1 ईयर। ये महिलाओं के लिए भी है और फीमेल स्टूडेंट के लिए भी है, मतलब दोज आर वर्किंग वुमेन्स उनके लिए भी है, एंड दोज द गर्ल स्टूडेंट हु आर डूइंग पीएचडी उनके लिए भी है। एंड ये जीएसपीएस का एडवर्टाइजमेंट आया था, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही।
ये है वेबसाइट SARB का जो आपको विजिट करना है। देन वुमेन्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि एक फेलोशिप है, पोस्ट डॉक के लिए जा सकते हो। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के बहुत सारे फेलोशिप्स है। ये दिस इज नॉट ऑस्ट्रेलियन, दिस इज अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी वुमेन। यहाँ पर भी आप पोस्ट डॉक के लिए जा सकते हो। ये JSPS का एडवर्टाइजमेंट आया था, पुराना एडवर्टाइजमेंट है, बट इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि एवरी ईयर ये सितंबर में इसका लास्ट डेट होता है। तो आप आप सितंबर के आसपास अगर ये ढूंढेंगे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, राइट। सो क्योंकि समय की पाबंदी थी इसलिए मैंने बहुत फास्ट लेकर गया हूँ। आखिर में जैसे गुप्ता जी ने बताया कि आपके पास 5 मिनट में, तो आई ट्राई टू समराइज एवरीथिंग। बट मैंने क्या किया कि आपको एक पॉसिबिलिटीज बताया कि क्या क्या आप कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, राइट। तो आप अभी नाउ दिस सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर। गुप्ता जी आप देखिए, किसको Yes, कुछ सवाल है तो yes, sir. Yes, sir. Thank you, पूछिए। sir. Thank you, sir, for such an informative talk. It was really motivational, really amazing, sir. Thoughtful and career-oriented talk, sir. Thank you, sir. We will continue with the speaker, sir, for the interaction Yes, session. You are free to ask any question about your life, about your career, what to do, आप कुछ भी पूछिए, what आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिस्पॉन्ड। what you want to do, what to, not to do, your wishes, whatever be in your mind, true, false, whatever it would be, just ask sir, such questions to our sir. So, may I see who wants to ask? Muhammad Anas. Muhammad Anas, you want to यस ask सर। a question? सर मेरा ये क्वेश्चन था, जो समर और विंटर्स प्रोग्राम होते हैं उनका हाँ। मेन पर्पस क्या होता है? वहाँ पे क्या मतलब हमसे मतलब क्या वहाँ पे हम सीख सकते हैं? या देखिए, हाँ, समर विंटर प्रोग्राम का मेन प्रोग्राम कहीं पर भी, वेदर इट इज इन इंडियन गवर्नमेंट, मतलब जो मैंने बताया आयुका के है, जैसे कि वो बोस इंस्टीट्यूट ऑफ कलकत्ता वो बताया मैंने, बेंगलोर का इंस्टीट्यूट बताया, कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज के बताया। मेन पर्पस क्या होता है ना कि स्टूडेंट को मौका मिले उस इंस्टीट्यूट के बारे में जानने का, क्योंकि समर विंटर प्रोग्राम में यू आर गोइंग टू गेट अपॉर्चुनिटी टू गो देयर, स्पेंड सम टाइम मे बी, बिकॉज फॉरेन में जो है तो 2 वीक्स के होते हैं, इंडिया में जो प्रोग्राम है समर विंटर वो 1-1 महीने के होते हैं। तो आपको वो दरम्यान वो इंस्टीट्यूट को समझने का मौका मिलेगा, वहां पर क्या रिसर्च चल रहा है वो समझने का मौका मिलेगा, एंड देन वेदर यू विल बी इंटरेस्टेड इन रिसर्च इन दोज एरियाज, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट का अपना एक एरिया फोकस होता है, उनके पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल बी डूइंग रिसर्च। तो अपने आप को एक परखने का आपको मौका मिलेगा कि क्या इस एरिया में मैं कुछ कर सकता हूँ, राइट। क्योंकि क्या होगा ना, मान लो कभी कभी हमसे गलती होती है बच्चों से कि मान लो आप जाना चाहते हो एक जगह पे, पहुंच गए कुछ और कहीं और, राइट। तो इससे क्या होगा ना, अपने आप को परखने का मौका मिलेगा आपको कि वो जो इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट सही मायनों में आपके लिए यूजफुल रहेगी क्या, आपके पास जो नॉलेज है वो वहां पर काम में आएगा क्या। तो ये एक मौका मिलेगा आपको, एंड मोरओवर वो लोग भी आपको जानेंगे, क्योंकि वो भी किसी को भी PhD के लिए नहीं लेना चाहते, क्योंकि एट द एंड ऑफ दैट समर प्रोग्राम दे आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज मेनी इंटरेक्टिव सेशंस during the programs, and they are going to have some assessment also, right. On the basis of that they are going to pick some student for PhD. Yes sir, thanks. Okay. We have number of questions from student side. Avnish Mishra, you want to ask? Yes sir. Yes sir. सर मेरा क्वेश्चन चीफ गेस्ट सर से है कि आप इतने बड़े मुकाम पे कैसे पहुंचे और आपकी इस जर्नी में आपको किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, और देखिए, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए मैंने सबसे पहले तो सुशांत से लेकर शुरुआत किया कि बेचारा जो ये उभरता हुआ कलाकार जो है अपने आप को खत्म कर दिया उसने, क्योंकि मैंने इसलिए एग्जांपल दिया, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स वेरी रिसेंटली वी हैड, राइट। सब पूरी दुनिया को, मतलब हम सभी हम बता नहीं रहे कि अंदर से हमें सदमा पहुंचा है, कहीं ना कहीं हमें चोट पहुंची है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक जो ऐसा बंदा था जो अपने पैरों पे खड़ा रहकर, मतलब बिहार के एक छोटे से गांव से वो आया बंबई जैसे शहर में, आपको पता है कि वहां पर तो किसी की नहीं चलती, वेदर यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र और आउटसाइड महाराष्ट्र, वो अपने आप को खड़ा कर पाया, राइट। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सुशांति नहीं है हमारे ये इस जीवन में, आप अगर पूरे भारत वर्ष में अगर आप देखोगे तो ऐसे देयर आर मेनी पीपल, राइट। लेकिन आपको जो भी आपको कठिनाइयां आएंगी, अगर आप उससे हारेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे।
जितने भी सक्सेसफुल विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन, जैसे कि अब हम आजकल बात कर रहे हैं कि जो हीरो हीरोइन से अपने बेटे बेटियों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, लेकिन आप मुझे बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कितने हैं, कितने परसेंटेज है कि जो हीरो हीरोइन के बच्चे सक्सेसफुल हुए हैं। आप सुनील गावस्कर की बात करिए, सुनील गावस्कर का अपना खुद का बेटा, वो अपने बेटे को इंटरनेशनल प्लेयर नहीं बना पाए, राइट। तो अगर हम खाली वो जो नेपोटिज्म का जो बात चल रहा है, वो दैट इज नॉट द ओनली थिंग, राइट। तो होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होता है, बट लेकिन आपके पास अगर हुनर है, अगर डेडिकेशन है, तो आप कभी भी नहीं हारोगे, राइट। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने एक स्लाइड बताई थी कि स्टडी हैबिट्स, वो जो है ना हैबिट्स, हैबिट्स और क्या करना चाहिए आपने। हैबिट्स में मैंने बहुत सारे बताया कि आपको आपको मतलब पढ़ने की आदत होनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सब मैंने आपको बताया। वो अगर आप बताएंगे, वो अगर आप करेंगे, वो स्लाइड को मैं फिर से आपके सामने जस्ट क्विकली मैं आपके सामने लाता हूँ, क्विकली मैं वो फिर से नहीं बताऊंगा, लेकिन आपके सामने उसको लाता हूँ, सो दैट वी जस्ट गो थ्रू दैट क्विकली। 2 मिनट में मैं उस स्लाइड को आपके सामने रखता हूँ, आप देखिए उस स्लाइड को। यस, ये स्लाइड, अगर ये स्लाइड देखिए, ये सबके लिए, मतलब मैं मेरा इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि सबकी लाइफ में जितने भी बड़े लोग हैं ना, जितने भी एक अलग मुकाम पे जो पहुंचे हैं, वो सभी को मतलब बड़े मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, और इवन वो करते भी है आजकल भी। लाइक इफ यू आस्क मी, इवन टुडे आई एम फेसिंग मेनी हर्डल्स, whenever I'm working in the universities, I'm facing many hurdles, लेकिन उससे हारना कोई बात नहीं ना, बल हार का जीतने वाला तो बाजीगर कहते हैं ना। अगर मुसीबतों के अगर हार पाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक तरीका होना चाहिए। अपने आप को मतलब डिपोलराइज आप अपने आप को नहीं करोगे, अपने आप को अपना मॉरल हाई रखने के लिए एक तरीका, साइंटिफिक तरीका अपने अडॉप्ट करना चाहिए। ये है साइंटिफिक तरीका, जैसे कि मैंने बताया कि ये आपको करते रहना चाहिए। जब ये आप अगर मैंने कहा ना, यू मस्ट हैव एंड यू मस्ट बी, ये अगर आपके पास है तो आप कभी भी मायूस नहीं होंगे। तो मैं कहता हूं कि आपके लिए भी, सभी स्टूडेंट की मेरा सजेशन ये रहेगा कि यू मस्ट हैव दिस स्टडी हैबिट्स, कंप्यूटर लिटरेसी, एक्सपेरिमेंटल लिसनिंग, प्रोफिशिएंसी, फिजिकल फिटनेस। तो आप हार भी जाओगे तो आप मायूस नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि यस, मेरे लिए तो अभी दरवाजा खुलने वाला है, मेरे पास तो सब कुछ है, तो मैं क्यों मायूस हूं, मुझे तो मौका मिलने वाला ही है। तो यू आर नॉट गोइंग टू बी। अब देखिए ना सुशांत को, जैसे कि आप देखिए, मुझे याद है कि शाहरुख खान दिल्ली के हैं, उनका पहला पहला सीरियल तो कुछ और था, लेकिन सर्कस सीरियल मैंने उनका देखा सबसे पहले। उससे पहले भी एक सीरियल में आए थे, तब मुझे पता नहीं, तब मैं आई वॉज इन 20, मेरा 25-26 मेरा एज होगा तब, वो दिनों में। तो मुझे लग रहा था कि ये बच्चा डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। अब उन्होंने क्या क्या नहीं सहा होगा, वो शाहरुख को ही पता है, बेचारे ने क्या क्या नहीं सहा होगा, टीका टिक कर रहा, और आज उसने क्या करके बताया। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स। तो ऐसे बहुत सारे धोनी की एग्जाम्पल लीजिए आप, धोनी कहाँ से आया और क्या बना, हमने तो उसका अनटोल्ड स्टोरी सुना है धोनी का, वही सुशांत ने किया था, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे सामने, तो आपको देखना पड़ेगा कि किसका एग्जाम्पल आपको अपने लाइफ में उतारना है, राइट। उसको सामने रखते हैं, वो एक उसको आप एक अपना हीरो बनाइए, उसका आपको एक आइडियल बनाइए, और उसको सामने रखते हुए चलिए। यू विल नॉट गेट डिमोरलाइज्ड एवरी टाइम, एनी टाइम। ओके, निशा वर्मा, थैंक दिस यू। सेशन, now this interaction session is open for everyone. आप सभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिन्हें भी क्वेश्चन पूछना है अपने आप को अनम्यूट करेंगे। यस सर, आपका ऑडियो जो है यस unmute सर, होगा। नवीन मिश्रा। नवीन मिश्रा, हेलो सर, यस सर, आस्क हेलो सर, हाँ, यस, गो अहेड, पूछिए। यस सर। सर हम आपसे, यस सर, सर आपसे पूछना चाहते हैं कि सर कुछ ऐसे डिप्रेशन होते हैं। वन मिनट, बाकी लोग अपने आप को अनम्यूट म्यूट कर लें, अपने आप को बाकी लोग म्यूट कर लें। क्वेश्चन जो पूछ रहा है वही केवल हेलो, हाँ, बोलिए। हाँ हेलो, यस सर। सर हम आप ऐसे, सर हम बोल रहे हैं, हाँ सर, सर आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ मैं सही। सर हम बोल रहे हैं हेलो, I have to mute all. Now Naveen Mishra. Yes, yes, sir. Unmute yourself and ask question. सर यस सर। सर हम पूछ रहे हैं कि सर कुछ ऐसे डिप्रेशन होते हैं कि जिनको आप सर बुलाना चाहते हो तो नहीं भूलते होंगे, बार-बार वही डिप्रेशन, और इससे आपकी जो
उसका सर इफेक्ट पड़ता होगा। आप आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे जो भी मैं समझा उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं आवाज आपका ब्रेक हो पूरा सवाल मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। देखिए आपको सब कुछ भूलना ही नहीं है। हम क्या होता है ना, वो भूलने के चक्कर में अपने आप सर। खत्म करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि मुझे वो भूलना चाहिए और बार-बार उसको याद करते रहते। प्रॉब्लम क्या है, हम भूलते क्यों नहीं है, हम बार-बार उसी को हूँ कि मुझे इसको भूलना है, इसको भूलना है, इसको भूलना है, और वो भूल ही नहीं पाते। भूलने का तरीका मैं आपको बोलता हूँ, साइंटिफिक तरीका है कि अपने आप को किसी और काम में आप मतलब बिजी करिए। भूलने का वो बेस्ट तरीका है, क्योंकि ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं। मेमोरी हमारी, देखिए मेमोरी ऐसी है कि अगर हम चाहो तो कुछ भी कर सकते, नहीं चाहो तो आप कुछ भी करें वो होगा नहीं। आप अगर कोशिश करेंगे, अगर कुछ चीजों को भूलना है, आपको ऐसे ही रखिए। आप अपने आप को एडजस्ट करिए, अपने आप को बोलिए कि ठीक है मुझे इसको भूलना नहीं है, राइट। उसको वैसा है वैसा रखिए, अपने आप को किसी और काम में आप लगा दीजिए। एक समय आएगा कि आप अपने आप भूल जाओगे, एक समय आएगा, लेकिन अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा। आप अगर बिजी नहीं रखोगे, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, हम ये सुनते हैं। तो आपको दिमाग जो है ना कहीं आपको एंगेज करना पड़ेगा। आप जब तक एंगेज नहीं करोगे, उसको भूलने की कोशिश मत करिए। आप उसको बोलिए कि ठीक है, ये बुरा ये एक इंसिडेंस था मेरे लाइफ में जो हो चुका है, ठीक है, मैं इसको बस यहीं पर रख रहा हूँ, मैं भूल नहीं चाहता, यहीं पर रख रहा हूँ, लेकिन नाउ आई वुड लाइक टू कीप माई सेल्फ बिजी इन सम अदर वर्क। आप अगर अपने आप को बिजी रखोगे तो मैं बताता हूँ, एक आप प्रैक्टिस करिए, आप 2-3 महीने में आप वो चीज को कम से कम कर पाओगे। भूलेंगे तो नहीं। देखो हमारे लाइफ में जो होता है ना, जो चीजें होती है ना, हम कभी भी नहीं भूलते उस चीजों को, लेकिन उसका जो इंटेंसिटी है वो कम कर सकते हैं, उसका दुख जो है वो कम कर सकते हैं। दुख कम करने की कोशिश करना। यस सर, यस, थैंक यू सर। डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, डिप्रेशन ये वर्ड नहीं यूज यस सर, यस सर, थैंक यू सर। यस। निशा वर्मा। यस सर। हाँ, आस्क फॉर क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर क्या हार्डवर्क जरूरी है? सर हार्डवर्क तो एक रिक्शे वाले भी करता है, फिर भी उसे सक्सेस नहीं मिलती। कितने लोग ऐसे होते हैं कि सर वो थोड़ा सा ही हार्डवर्क करते हैं और बहुत आगे जाते हैं, और कितने लोग दिन भर करते रहते हैं फिर भी वो उन्हें सक्सेस नहीं मिलता। तो सर क्या हार्डवर्क जरूरी है? देखिए आपने खुद ने जवाब दिया उसका, क्योंकि एक जमाना था जो हम कहते थे कि यू नीड टू बी वेरी हार्ड वर्किंग। आज ये दौर आया है, हम अब कह रहे हैं कि यू नीड टू बी स्मार्ट वर्किंग, राइट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा नहीं है। चल रहा है। अब देखिए, इसको आप मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश मत करिए। आप जरा समझने की कोशिश करना। हम बहुत बार ऐसा समझते हैं कि अभी हार्ड वर्क हैज बीन रिप्लेस्ड बाय स्मार्ट वर्क। डज इट मीन दैट यू नीड नॉट वर्क? नो, ऐसा नहीं है। जैसे कि आप एमएससी के स्टूडेंट हो, क्लासिकल मैकेनिक्स आपने पढ़ लिया होगा। मान लो एक कोई स्टूडेंट है, बेचारा वो रात दिन पढ़ते रहता है, राइट, दिस इज हार्ड वर्क। आप सोचेंगे कि नहीं अभी मुझे हार्ड वर्क नहीं करना है, दिन में मैं 5 मिनट पढ़ूंगी एंड देन आई एम गोइंग टू बी वेरी स्मार्ट। नो, ऐसा नहीं है। स्मार्ट वर्क का मतलब ऐसा है कि आपको देखना है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आपको ये देखना है कि कितना पढ़ना है। आपको ये देखना है कि क्या स्ट्रेटेजीज आपकी होनी चाहिए उसको याद रखने की। दिस इज व्हाट वी कॉल ए स्मार्ट वर्क। इट डजंट मीन दैट हार्ड वर्क हैज बीन रिप्लेस्ड। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी आपको, लेकिन आपको उस मेहनत को आपको थोड़ा बेटर तरीके से करना पड़ेगा, सो दैट यू नो, जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल ही कोट करता हूं। जैसे कि मान लो एक कोई स्टूडेंट है क्लासिकल, जैसे कि सबसे टफ सब्जेक्ट फिजिक्स के बच्चों को कौन सी जाते हैं? कुछ बच्चों को, राइट। मैं तो एमएससी में था, आई वाज वेरी लाइक क्लासिकल मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स मेरे बड़े फेवरेट सब्जेक्ट रहा करते थे। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट को डर लगता है क्लासिकल मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, डर लगता है, राइट। उसका रीजन क्या है ना, उसके लिए प्रैक्टिस लगती है, राइट। अब प्रैक्टिस करने के लिए हमें, देखिए, आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपको क्या करना है, आपका टारगेट क्या है। जब आप शुरुआत से आप बस स्टडी कर रहे हो तो आपका टारगेट होना चाहिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जब आप एग्जाम के समय कर रहे हो तो टारगेट होना चाहिए एग्जाम। आप अगर राइट फ्रॉम बिगिनिंग एग्जाम अगर टारगेट करके रखोगे और आप उसको बाय हार्ट करने की कोशिश करोगे तो एग्जाम के बाद, एग्जाम के समय तो भूलना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो ये हो गया आपका हार्ड वर्क, बुल वर्क कहूंगा मैं उसको। स्मार्ट वर्क ये होता है कि भाई अभी एग्जाम काफी आगे है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू स्पेंड टाइम ऑन
कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मैं ऐड करने के चक्कर में नहीं जाऊंगा, मुझे अभी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ समय देना है। जब एग्जाम आएंगी तो मुझे देखना है कि मेरा थ्रेशोल्ड क्या होना चाहिए। ऐसा आई शुड नॉट ट्राई फॉर 100 आउट ऑफ 100। मेरा थ्रेशोल्ड क्या होना चाहिए? मेरा थ्रेशोल्ड है 70%। तो 70% के लिए मुझे अभी क्लासिकल मैकेनिक्स में कौन से टॉपिक है कि जो मुझे बहुत ज्यादा टफ लगते हैं, जो मुझे बिल्कुल सताएंगे, मतलब मुझे याद करना डिफिकल्ट जाएगा, कौन से टॉपिक जो है जहां पर मैं कंफर्टेबल हूं, आप चूज करिए, राइट। वो चूज करते हुए 70% में उसको कन्वर्ट करिए, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल एंड यू विल बी हैप्पी। सक्सेस और फेलियर का एग्जांपल मैं बोलता हूँ। कैसा है ना, एक स्टूडेंट है बेचारा, वो चाह रहा था कि ही वाज एक्सपेक्टिंग लाइक पास 40%, राइट, लेकिन समहाउ उसने कुछ किया एंड ही एंड अप विद 60%, ही विल बी वेरी हैप्पी, राइट, ही कैन सेलिब्रेट, क्योंकि 40% एक्सपेक्ट कर रहा था, उसको 60% मिला। लेकिन दूसरा स्टूडेंट है जो 80% एक्सपेक्ट कर रहा था, ही एंड अप विद 60%, ही विल बी सैड। क्या ऑन पेपर में दोनों को 60% मिला है, लेकिन एक स्टूडेंट है सेलिब्रेट कर रहा है, दूसरा बेचारा है जो दुख के खाई में अपने आप को उसने ढकेल दिया है, राइट। तो अपने आप को समझना पड़ेगा कि आपको आनंद किससे मिलेगा, राइट। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में डिफरेंस ये है, आपको मतलब देखना पड़ेगा कि क्या करने से आपको क्या मिलेगा, आपका टारगेट क्या है। अगर टारगेट ओरिएंटेड आप रहोगे, समय के साथ अगर आप अपने आप को अगर ऐसा अपने आप को एडजस्ट कर पाओ, तो यू आर गोइंग टू बी अ स्मार्ट पर्सन एंड यू विल बी सक्सेसफुल एट द एंड ऑफ द डे। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। Next Thank you, friend sir. from MSc Yes. final, Ruben Samson Yakub. Ask your question. Uh, Good morning, sir. Yes, Thanks for such a motivational lecture. Sir, you told about a lot of fellowship and scholarship for foreign universities. Mhm. So my question is, if somehow a student is not able to get any fellowship or scholarship, will he or she will be able to go there and study? What are the monetary constraints? Okay. I told you, like, okay, one way to, go to the foreign good universities, I will say foreign universities, I will not label good and bad, okay, is that you should have very good GRE score and TOEFL or IELTS score, so that you can have fees waiver as well as the fellowship for maintenance, right, day-to-day maintenance. लेकिन मैंने ये भी बताया कि there are many other options and I have seen those options as well. When I was in South Korea, I was in Taiwan, I have seen, एक example मैं quote करूंगा आप यहाँ पर। When I was in Taiwan, उस यूनिवर्सिटी का नाम, मैं तो था साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में था मैं, ताइवान में, ताइपे में। बट देयर इज वन मोर यूनिवर्सिटी व्हिच इज 80 किलोमीटर अवे, in the QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग इट इज अंडर 150, लाइक इट मींस आपको पता है कि इंडिया में IITs भी देयर आर, मतलब पहले 100 में नहीं है, पहले 200 में एक दो IITs हमारे हैं। सो दैट यूनिवर्सिटी सिंचू नाम है सिटीज का, वो यूनिवर्सिटी का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। उस यूनिवर्सिटी में मेरा कोलैबोरेटर मेरा टॉक रखा वहां पर, आई वाज देयर फॉर डिलीवरिंग वन टॉक, एंड देन आई थॉट लाइक सिंस आई एम हियर, लेट मी मीट इंडियन स्टूडेंट जो भी टॉक सुनने आए थे, तो इंडियन स्टूडेंट को मैं मिला। सो आई कुड कम अक्रॉस वन स्टूडेंट फ्रॉम औरंगाबाद इटसेल्फ, मुझे पता नहीं था, मेरे यूनिवर्सिटी का ही था। What he did MTech from my university in chemical engineering, right? And then he was doing PhD there. तो मैंने उसको पूछा out of curiosity, बेटा कैसे आए हो आप? तो उसने कहा कि सर ऐसा है कि मेरे पास ना तो GRE था, ना TOEFL था, ना तो IELTS था, but I was very desperate to do PhD in foreign universities. And then what I did, I started searching, professors. I came across this professor, and I thought like I could be a good addition in his group. Right, and fortunately he was he did good project during his MTech, जिसके पास कुछ सक्सेस स्टोरी थी खुद की। And then what he did, he wrote a letter, जो मैंने पहले बताया ना आपको कि आपके पास सक्सेस स्टोरी होनी चाहिए, आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि you could be a good value additions for them, right? So he has identified some of the issues in the laboratory of the professor from that university and started writing email, right? Email में लिखा कि sir, I did my MTech from this and this university. I was working on this project during my MTech, and I have saw your profile, and then I could I believe that I could be a good addition in your group. Can you please provide me some fellowship? And then he sent a couple of email, right? He responded. I mean, the student sent couple of email, and after a couple of email, professor thought that okay, let me respond. Respond क्या दिया उसने? Response ये दिया कि बेटा देखो, right now I don't have. You are a good student. I have gone through your profile, but unfortunately I don't have any fellowship as on today. So whenever I will be having fellowship, I will allow you, right? Then लेकिन student शांत नहीं हुआ, right? उसके पिता खुद प्रोफेसर थे मेरी यूनिवर्सिटी में। बाद में उस स्टोरी मुझे पता नहीं थी, बाद में उसने बताया।
then what he did, he took risk, right? ताइवान में जाने के लिए मतलब वीजा आपको मिल जाता, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं, यूएस यूके के लिए जैसा नहीं है. He took risk. He got the visa and he entered in the university, and then one fine morning he met the same professor and he said, sir, I am the same student who used to wrote you email and you said like right now I don't have fellowship, and then I cannot offer you fellowship, but sir, I'm here now. I would like to you offer me fellowship or not, doesn't make any difference. I'm going to work in your laboratory. अब कैसे किया होगा? उसने स्टूडेंट ने कहा कि सर ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, राइट? व्हाट वाज द स्ट्रेटेजी? क्योंकि ताइवान ज्यादा एक्सपेंसिव देश नहीं है, क्योंकि पिताजी प्रोफेसर थे, तो उसने मैनेज करके गया. 1-2 महीने का एक्सपेंसेस, वहां पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं लगता ताइवान में. सो ही थॉट दैट लेट मी हैव सम मनी टू डू माय रेगुलर एक्सपेंसेस फॉर कपल ऑफ मंथ्स. कुछ बच्चे थे पहले हमारे यूनिवर्सिटी के, उनके रूम में रहने लगा. लेट मी टेल यू, प्रोफेसर ने कहा कि ठीक है, अब तू आ ही गया ना, तुझे मैं एक टास्क देता हूँ, डू दिस फॉर 1 month एंड लेट मी सी वेदर वी कैन डू इट. So ये बच्चों को लगा कि this is going to be my wonderful opportunity for me. He started working, and 1 month's time he has showed a wonderful result, right? And the professor got impressed. Professor ने एक नहीं 2 फेलोशिप उसको ऑफर किया, right? 2 फेलोशिप ऑफर किया, and later on he got married. अपने वाइफ को बुलाया, वाइफ को भी उसी प्रोफेसर के अंडर काम के. फॉर्चुनेटली he married with the same profession girl. The professor offered fellowship for her as well. Now both of them are in Taiwan. उनको सैलरी इतनी है कि यहाँ के प्रोफेसर, मतलब जो वेजेस, उसको खुद को 2 फेलोशिप है, वाइफ को फेलोशिप है, मिलाकर इंडिया में जो प्रोफेसर का सैलरी वो बेचारा वहां पर कमा रहा है. यू कैन सी देयर आर मेनी एग्जांपल. दिस इज वन एग्जांपल आई हैव कोटेड. There are many examples. You do not take risk, right? But if you start writing email today, right, within 5-6 months, let me tell you, within 5-6 months, you are going to get one or two invitation. Let me tell you my own story. How I started getting fellowship. I started getting fellowship opportunities outside the country after 2006. Let me tell you, my friend. I got my PhD in 1996. Let me tell you, 1996 I got my PhD. I was working during those days. I was working in one of the affiliated colleges of this university, but I was very passionate. I was very passionate to do postdoc outside. I started searching. And first time in 2006, I got fellowship from Australian government. It was visiting fellowship because I was teacher at that time, right? I went there for 3 months, right? In 3 months, I could publish 1 research paper in good journal. I came back, I got vice class from government of India. I went to US. I was there for 6 months. I got 2 papers from that. And then I got another fellowship from NIH. Again, I went there for another 1.5 years. And then later on, I went to South Korea, I went to Taiwan, I went to Japan. Like, there are many. So you don't need any godfather. Let me tell you, my friend, if somebody is very passionate, and if you're really desperate to go to abroad, I would not advise you to go there and settle down. But students should go there and enrich themselves, because unfortunately क्या है ना, हमारे पास जहां पर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, देयर आर वेरी few universities, institutions. लेकिन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, जैसे ताइवान छोटा सा कंट्री है, आपको बताऊं, वेरी टाइनी कंट्री. मतलब आपका जो यूपी है, यूपी का आधा भी नहीं होगा, इतना ताइवान है. लेकिन लेट मी टेल यू, इंफ्रास्ट्रक्चर गजब का इंफ्रास्ट्रक्चर उन लोगों के पास. हमारा आईआईटीज के पास भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि वो यूनिवर्सिटीज में है. तो हमारे पास आईआईटी में कितने बच्चों को मौका मिलता है? वेरी फ्यू स्टूडेंट. ज्यादातर हमारे पता है हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? जहां पर मासेस पढ़ाई करते हैं, जो है स्टेट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सटेंशियल कमियां हैं, जहां पर वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्टूडेंट विजिटिंग टेकिंग एजुकेशन आईआईटीज, आइजर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर गजब का है. अनफॉर्चुनेट पार्ट, राइट? इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी को ऐसे आईआईटीज में मौका नहीं मिलता. लेकिन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, लेट मी टेल यू, इफ यू आर पैशनेट, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अपॉर्चुनिटी. गो देयर, एनरिच योरसेल्फ, कम बैक and then you flourish like anything. आपको बताऊं कि मेरे यूनिवर्सिटी में, मैंने वो मेरे यूनिवर्सिटी को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया. मेरा जो रूसा सेंटर है, आई वाज इन यूएस में जिस लैब में मैं काम करता था, लाइक इट वाज अ कोलैबोरेटिव ग्रुप. 3 प्रोफेसर मिलकर काम करते थे. तीनों मिलकर जो फैसिलिटीज उनके पास थी, उससे ज्यादा फैसिलिटीज विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ डीएसटी, उससे ज्यादा फैसिलिटीज मैंने मेरे सेंटर में क्रिएट की. लाइक वंडरफुल फैसिलिटीज, like state of the art facilities for material synthesis, device fabrication, characterization, गजब की facilities हमने create की.
हमने सबके लिए ओपन किया, क्योंकि आई नो लाइक आई व्हेन इन द बिगिनिंग फेज ऑफ माय करियर आई यूज्ड टू स्ट्रगल लाइक एनीथिंग टू हैव एक्सेस, सो आई मेड इट ओपन फॉर एवरीबॉडी। पिछले 4 साल 2016 में हमने वो सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट किया है। पिछले 4 साल में लगभग 40 कोलैबोरेटिव प्रपोजल एफिलिएटेड कॉलेजेस के और स्टेट यूनिवर्सिटीज के बच्चे आके काम करते हैं। लगभग सभी मतलब इंश्योर करता हूँ कि जब भी कोलैबोरेटिव कोई काम करता है तो कम से कम उनका एक स्कोपस पेपर होना चाहिए। तो आई ऑलवेज इंश्योर दैट ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि 30-40 पेपर उन्होंने खुद के मतलब एवरी नॉट एवरी ऑल 30-40 प्रपोजल एवरीबॉडी एंड अप विद एटलीस्ट 1 or 2 स्कोपस पब्लिकेशन एंड उससे एक्सपीरियंस मिलता है। लोगों को एक्सर्टी दिखने के लिए मिलता नहीं इंडिया में, हम बच्चों को यूज करने देते हैं। रामन है, एक्सर्टी है, एएफएम है, देयर आर मेनी फैसिलिटीज वी हैव, स्टूडेंट्स आर कमिंग देयर यूजिंग द फैसिलिटीज। ये मौका बहुत ज्यादा मिलता नहीं हमें या इंडिया में, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चे बाहर जाए, एमएससी करे, पीएचडी करे, अपने आप को एनरिच करे, फिर वापस आकर हमारे कंट्री के लिए, हमारे बच्चों के लिए काम करे। दिस इज व्हाट माय सजेशन टू ऑल यंग स्टूडेंट। Thank you, sir. Thank you.